We are connecting after a long time on this show called Speak Up Q&A, but that's because today is an extremely important day. It's 3 years since Sushant Singh Rajput left us. We do not know what happened to Sushant Singh Rajput on 13th or 14th of June 2020. Will he get justice? Will we know what happened to him? Was it a murder or a suicide? These are the kind of questions that we are still looking for. We just wish and hope that it is not another year before we come to know. And for that to happen, according to me, public pressure is extremely important. There are a lot of people who have joined me. Let me go and get talking to them one by one. A lot of people I can see, and a lot of people would join. Quickly, short, so that all three can speak, and then you can go and speak at length. So, one quick comments from all three of you. Yes, first, Manny. So, sir, basically, I'm not surprised if Sushant's case has really not moved as far as legal justice is concerned. It's not very surprising as far as I'm concerned because, no case is solved if there is politics involved. Yeah. And, it looks like that a lot of political people were involved in this case, and we've seen it over a period of time. So all politicians, according to me, scratch each other's back. It doesn't really matter which government is in power because they all are saving each other when they are in power. So I'm not really surprised that Sushant's case is really not moving forward. It's because it's highly politically, dominated, Yeah. and that's how somehow, unfortunately, in our country, that is what is prevailing. Also, I've seen that in High Court, all the actors, Bollywood actors, if they are caught up in something, they're all released. I mean, anybody can say whatever they want to, doesn't move beyond Bombay High Court. For some reason, everybody's acquitted there only. Mhm. So, I mean, you take it whether it's Aryan Khan's case or it's Dia Khan's case or it's Sushant's case or Riya Chakrabarti's case, all of them seem to be just, getting free or acquitted in Bombay High Court. So, I mean, I don't know, as public, you just feel that you don't trust the No, legal justice anymore. but many 3 years ago, when you started being part of this campaign, did you actually think that it will be 3 years before you get to know or not know? So, actually, if you ask me, I think somewhere a year down the line, I actually realized that it's going to go this way. And that's why I always spoke about justice at three levels. Um, you know, One is the legal justice, and one is the law of karma, and then, third is the, where you give him recognition, that Yeah. kind of justice. So I think, according to me, I'm not surprised, and I won't be surprised, that every year, if you do end up doing a show on his, whether it's his birth anniversary or 14th of June, I think over the years, even if you keep continuing, people who in the first year, really fought for his justice or kind of try to understand what had actually happened to him. Today, 1 year down the line, we are still here. So it's not that the public opinion is really changed. It's just that the process is slow, so slow, legal process is so slow that, in my mind, I've already made a conclusion. I don't really care about the justice, legally. So as far as Sushant's recognition and his Okay. reputation Okay. is concerned, according to me, we all know Sushant could never take a step like this. Okay. Okay. I'll come. I'll come and discuss this because there are few questions that I have, counter questions. I mean, but let's go to Margaret quickly. Margaret, just 20 seconds, and then Rinku next. I think Rinku is outside, so let's go. Let Rinku speak first. Rinku, yes, go ahead. Okay, good Very good, evening, Rinku. everybody. Yeah. It's a great day to see you all, but the platform is uh, again connecting us. What is so painful to know that we are standing on the same place where we had started because we have not been given justice. Sir, one thing I would like to say here that I mean, whatever points you gave for yesterday's survey you wanted to make, I'll connect all those points in a way that we are a family to SSR. We are a family of Sushant, and Sushant is not a person who was
who is not a, I mean, he is not a boy who belongs to one family. He is a person who is a family member to all. Very poor thing is that people are losing faith on CBI. This is a big challenge on the government, whosoever government is there. So according to me, we all need to be united. जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, मैंने हिंदी में अपनी ज्योग्राफी पढ़ी है, इसलिए मुझे ये वो टर्म याद आता है जिसको बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी. ज्वालामुखी दो टाइप पे होती है, एक एक्टिव होती है और एक होती है जो इनएक्टिव होती है. हाँ, एक एक्टिव मोड में होती है और एक होती है जो वो उसको सुसुप्त बोलते हैं हिंदी में, मुझे शब्द याद आता है. इनएक्टिव मोड में होती है. ओके ओके. सो और ये सबके दिल में ये दिया जल रहा है और ये तब तक जलेगा जब तक कि हम सुशांत को जस्टिस दिलवा ना पाए. Yes, Margaret, go ahead. So I think like the way we have started the movement, the kind of support we gave the family, if the family would have taken that support and instead of registering an abetment or suicide where we are saying it's a murder, तो ये केस शायद थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता था because the family is still far behind. I didn't wanted to blame the family. First of all, the family was too late. But still, even if they were late, if they would have gone by us, the whatever campaign we are doing that it is not a suicide, it's a murder, then also we are family, but we are not biological or legal family of Sushant. That's right. As you said, only the family can ask question to CBI. The CBI is bound to answer them. They will not answer us, right? Even if we are a family. Correct. So if अगर वो फैमिली हमारे साथ होती ना, तो आज ये काफी मतलब the support we gave them, if that same support if Jia's mother had got, I think Jia would have got the justice. उस वक्त हम लोग नहीं कर पाए, इस वक्त कर पाए, लेकिन हमारे पास वो फैमिली का सपोर्ट नहीं आया. Another thing which I asked even that day when you did the show, the family had a legal person who knows the legality of the whole thing. Even after that, how can so many mistakes or certain decision were taken, which you said that रात को postmortem नहीं होता है, कैसे वो लोग कर लिए? Like if the sister is a lawyer, there is a OC नहीं कौन है? Somebody in the police, right? The thing, yes. तो जो भी है, तो इन लोग को तो सारे लीगैलिटीज पता थे ना, तो उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि पोस्टमार्टम उन लोगों ने करवा दिया? I can understand Meetu Singh was not in that state. She was in a shock mode. There are people प्रिया, who स्क्रीन पे हो. know. प्रिया, कैमरा मूव मत करो. प्रिया, स्क्रीन पे हो, कैमरा मत मूव करो, आप स्टैटिक रखो कैमरा. यस. तो तब अगर वो लोग डिसीजन लेते, इवन द कोविड टेस्ट, अनदर थिंग इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ड्रग्स का कोई ट्रेसेस उन लोगों ने कभी बोला ही नहीं, फिर भी बोल रहे कि ही वाज अ ड्रग एडिक्ट. So there are so many things which the family could have just questioned, and they could have imposed or filed the case as 302 instead of abetment or suicide. Okay. So kahin na kahin, I think so family is lacking that. I will put a counter question, but first Priya and then Nina Ali. Yes, Priya, you are waiting for long. Yes, Priya, बोलिए आप. Yeah. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Please go ahead. बोलिए. सर मेरे भी मन में एक ही चीज आती है कि जब जो उनके फैमिली ने जब केस लगाया था, जो 30 सुसाइड का जो लगाया था, तो उनके पास सारे पिक्चर्स, हाँ सारे पिक्चर्स थे और सब कुछ था, तो वो शायद 302 तब होता तो कुछ आगे अलग केस होता. पर इतनी सारी चीजें पब्लिक में है, मैं तो मतलब हम जैसे लोगों को पता है, हम तो कभी सुशांत से मिले नहीं, उसे इतना सारा सब कुछ जो बॉलीवुड के लिए अटैचमेंट था, मतलब मैं तो खूब मूवी देखती थी, क्यों बोलूं, मुझे तो सलमान खान की इतनी मूवी देखती थी, पर अभी उस सुशांत में कुछ तो था, उस सोल में, प्योर सोल है उसकी, जो हर दिन लगता है कि कुछ तो होगा. मैं आपका भी देखते रहती हूँ हमेशा, फेसबुक में कुछ तो आया है क्या, सर ने कुछ डाला है क्या, या कोई भी डालता है, सब पता नहीं. लेकिन इतनी चीजें सामने होने के बाद भी गवर्नमेंट जैसे बीजेपी की आ गई, तो अभी लगा था अब कुछ होगा, ये तो और ज्यादा ही
ठंडा हो गया केस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या केवल पॉलिटिकल रीजंस हैं प्रिया, या आपको लगता है कोई और रीजन है? अगर इसको चलना पॉलिटिकल है, 3 साल तो निकल गए, अब 1 साल और भी निकल जाएगा और उसके बाद ये केस बंद ही हो जाएगा। तो अगर इस केस को चलना है तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? सर पॉलिटिकल तो है, पूरा पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिक्स के कारण नहीं हो पा रहा है, राइट? हाँ सर, अब जैसे बीच में फडणवीस जी ने भी कहा था कि वो एसआईटी बनाएंगे, वो कब बोला था? एक दिन हुआ, हम सब लोग एक्साइटेड वो हो गए। 22 ऑफ हाँ, दिसंबर उसके बाद कुछ भी नहीं, ओनली वो एसआईटी बन उनके, गई। एसआईटी बन गई। हाँ वो संसद में होती है बात, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, शायद वो एक दूसरे को डराने के लिए करते होंगे अपोजिशन को, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको पॉलिटिक्स के कारण लगता है? यस नीना मैम, प्लीज गो अहेड। Hello, sir. Good to see you after a long time. Good to see you And as all well. my Yes, friends. please go ahead. Please go ahead. Yeah, and all other people. सर मैं क्या बोलूंगी, जो सब बोल रहे हैं मेरा भी वही बोलना है। हाँ, नहीं, हम आप लोग सब वही साथ बोलने है। के लिए थोड़ी आई हैं, आप अपना अलग बोलिए। हम सब अभी भी खड़े हैं, हम सब वही हैं। इट्स नॉट दैट कैसे सारी हम सब बैठ गए चुपचाप। इट्स जस्ट दैट कि थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। हम जितना कर पा रहे थे, हम जितना कर सक रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जब लेकिन मैं कहता हूँ ना बैठ गए हैं, मैं लेट्स मी क्लियर दिस एंड क्लैरिफाई दिस। एक होता है मन में आग का जलना, है ना, वो वोल्केनो जो इरप्टेड है, और एक वोल्केनो है जो इरप्शन के लिए तैयार है लेकिन इरप्टेड नहीं है। इट्स स्टैटिक, इट्स क्वाइट, इट्स व्हाट यू कॉल इनएक्टिव। तो आपका इनएक्टिव होना ना कैंपेन में पार्ट होना नहीं होता है। कैंपेन में पार्ट होना वो होता है तो आप पहले थे, वेयर यू आर विजिबल। राइट नाउ मे बी फ्रॉम विद इन यू ऑल आर फीलिंग गुड, यू आर स्टिल कनेक्टेड, बट यू आर नॉट विजिबल। और विजिबिलिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजिबल नहीं है तो आप नहीं है, अगर विजिबल है तभी आप है। That's what I mean. Yes, go ahead. हम लोग सब विजिबल थे बिकॉज उस वक्त ये मामला बड़ा जोश में चल रहा था। हर तरफ से सारी न्यूज आ रही थी। कौन चला रहा था जोश में? जोश में कौन चला रहा था? फ्रॉम एवरी पार्ट, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, लाइक लीगली आप बोलिए, आप लोग जो बहुत सारे यूट्यूबर्स, आप सबसे पहले, हम तो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन आप थे। और ऐसे बहुत से दूसरे यूट्यूबर भी है जिन्होंने बड़े जोश से चला रहे थे केस को। नहीं चला रहे थे ऐसा नहीं, अपने अपने लेवल पे हर कोई कर रहा था। इवन सीबीआई की तरफ से हमको कुछ ना कुछ न्यूज मिल रही थी। जब समीर वानखेड़े जी जब वो एनसीबी में थे। नीना मैम सुनिए, ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्टों के कारण ये केस ऊपर चला गया था या सीबीआई पहले दिन आई थी। सीबीआई तो अगस्त 19 को आई है ना, तो आप अगस्त 19 तो बहुत दूर चले गए। पहले तो जो कुछ भी खड़ा हुआ वो आप लोग, यानी एसएसआर, आपसे मतलब आप नहीं, एसएसआर पब्लिक के जोश से था, पब्लिक के कारण खड़ा हुआ। तो अगर पब्लिक बैठेगी तो केस बैठेगा, पब्लिक खड़ी होगी तो केस खड़ा होगा। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। पब्लिक कहाँ बोलेगी, क्या करेगी, कितना बोलेगी? हम लोग बैठे हैं। पहले क्या कर रही थी पहले पब्लिक? बीच में आपने भी शोज कम कर दिए थे तो हम कहाँ जाएंगे? नीना मैम सुनिए, बीच में आपने भी शोज कम कर दिए थे तो हम हमारा वॉइस कहाँ लेकर जाएंगे? मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। 1 मिनट, लेट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहले आपने जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन स्टार्ट किया, उससे पहले तो लोग नहीं जुड़े थे। जब जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन हो, उस हैशटैग के कारण करोड़ों लोग दुनिया भर से जुड़ गए। फिर आपने सीबीआई फॉर सुशांत कैंपेन स्टार्ट किया, लोगों ने सीबीआई फॉर सुशांत को ट्वीट करना शुरू किया, ट्रेंड करना शुरू किया, नतीजा हुआ कि सीबीआई आ गई। उसके बाद आपने पीएम को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, उसके बाद एनसीबी को ट्रेंड करना शुरू किया। ऐसे ही एक भी ट्रेंड क्या आपने 302 फॉर सुशांत उस लेवल पे जाके किया? नहीं किया। क्या 302 पेपर पे आ गया? नहीं आया। जब नहीं आया तो कैंपेन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो फिर लोग क्यों हट गए? नहीं, हमने, मुझे याद है पब्लिक ने 302 के लिए भी बहुत आवाज उठाई थी, लेकिन ये पब्लिक के हाथ में नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपनी अर्जी ये करें। ये फैमिली के हाथ में। जब तक फैमिली उसकी नहीं बोलती कि हमको 302 चाहिए और हम उस लेवल पे ये केस को ले जाना चाहते हैं, हम लोग एज अ पब्लिक क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं, हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मैं फर्दर डिबेट करूंगा आपसे, जस्ट स्टे ऑन। यस मधु, प्लीज गो अहेड। मधु बोलिए। सर मुझे पहले तो ये कहना है कि सुशांत जहाँ भी है वो हम सबको अभी भी देख रहा है, और वो इतना स्मार्ट है सर कि उसको पता है कि इंडिया में इतनी जल्दी कोई भी फैसला होता ही नहीं है। उसको तो पता है, वो पेशेंस से बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है, उसको मालूम है इंडिया का सारा कुछ
डिस्कनेक्ट हो गया. So who goes? Who speaks next? Manny, go ahead. Manny, आपकी बारी है. Manny, you are mute. One second, man. 1 second. Let me unmute you. Margaret, आपका कैमरा फ्लिप कर रहा है. Margaret, don't flip your camera. Don't touch your camera. Yes, Manny, your Yes, camera is Hanji. hot now. Yes, yeah. Yeah, so I wanted to basically, say a So few what things. you had said few things. Let me ask you a counter question. My question is that it is good that all of you believe in सुशांत सिंह राजपूत. आपने कंक्लूड कर लिया दिमाग में कि हाँ ये मर्डर है, मैंने भी कंक्लूड कर लिया, बट वो नहीं होता है. क्या एक चीज होता है नोशनली बिलीव करना और एक चीज होता है एक्चुअली पेपर पे उतारना. नोशन में ये तो फर्स्ट डे से है कि इट्स अ मर्डर, बट टेक्निकली प्रैक्टिकली और ऑफिशियली इट इज स्टिल नॉट अ मर्डर. सो इफ यू जस्ट प्रिज्यूम कि आई हैव कंक्लूडेड, तो अगर कंक्लूड ही कर लिया है फिर तो सब के सब यही कह के हम सब घर बैठ सकते हैं. क्या उस कंक्लूजन से डायरेक्ट जस्टिस मिल जाएगा क्या? No, sir. So the justice has been, we had a lot of complaints against Bollywood, how it did not stand for Sushant Singh Rajput, and Bollywood का हमने अच्छे से बैंड बजाया है पिछले 2-3 साल में. So the thing. Is that justice that you are talking about? कि वो justice हो गया तो खत्म, Bollywood खत्म तो justice हो गया? No. It's not that Sir, it's part of justice. My thinking is only very different, because all this is all political will. At the same time, Ambani's का भी वो incident हुआ था, कितनी जल्दी solve किया था उन्होंने वो case. And we know very well that जिया खान के केस में जो लोग involved हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी involved हैं. I mean, this whole. How do you know that? We know. अच्छा, this is your notion. Yeah. We very well know, because we also know. अब दूसरी stories में जाएंगे तो फिर there's no. You're actually only looking at sir legal justice. I don't look at it as legal justice. मेरा 2 और justices भी हैं. So I told you legal justice is something that can carry on happening on paper, because it's all politically influenced. If it's all politically influenced, how do you expect a legal justice to happen? Because the case is not moving only. Actually, you know what? I will tell you कि जो आप लोग सोचते हो ना कि ये पॉलिटिकल है, इससे मैं एग्री नहीं करता. अगर ऐसा ही होता ना, इस देश में कोई केस सॉल्व ही नहीं होता. वो रंगा बिल्ला भी बच के चले गए होते, है ना. वो इंदिरा गांधी के किलर्स भी बच के चले गए होते, और वो राजीव गांधी के किलर्स भी बच के चले गए होते, और बाकी लोग भी बच के चले गए. ऐसे नहीं होता है. सर जिन का नाम लिया आपने, आई अंडरस्टैंड कि हमारी लीगल सिस्टम बहुत सारे लैकुना है, हमारी एजेंसी काम नहीं करती है बहुत तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई केस सॉल्व ही नहीं होता है. पॉलिटिकल एंगल एक लिमिटेड वे में आ सकता है. आज ये गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट है. आई एग्री विद यू. ऐसा नहीं है कोई केस सॉल्व नहीं होता है. ये गवर्नमेंट थी नहीं सर, मेरी बात तो सुनो. आई मीन आई एग्री विद यू, कोई केस सॉल्व नहीं होता. अब मुकेश अंबानी का केस सॉल्व हो जाता है, इंदिरा गांधी का केस सॉल्व हो जाता है, राजीव गांधी का केस सॉल्व हो जाता है. ये लोग कौन है? व्हाई आर यू नेमिंग हाई प्रोफाइल? ये जो गैंग रेप केस था दिल्ली वाला, वो कौन सा हाई प्रोफाइल केस था? नहीं, आपने ही सबके नाम लिए ना. मैं तो बोल रही हूँ जिन लोगों के केस सॉल्व हुए हैं वो सब पॉलिटिक्स में हैं. क्यों? और दे आर वेरी रिच. जो दिल्ली गैंग रेप केस है वो केस सॉल्व हुआ, उसमें कौन सा पॉलिटिक्स था? हाँ, जो निर्भया केस है ना, उसमें इतना कोई पॉलिटिक्स, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व ही नहीं था, तभी तो सॉल्व हो गया. उसमें सारे लोअर लेवल के लोग थे. बिकॉज अगर किसी पॉलिटिशियन का सन इन्वॉल्व होता, मुझे बता देना था कि कैसे सॉल्व होता. तो फिर गोइंग बाय दैट, आपको ये मालूम नहीं, पता नहीं डीपी यादव का नाम कितने लोगों ने सुना है यहाँ पर, विनोद शर्मा का नाम कितने लोगों ने सुना है, जो मनु शर्मा है जसिका लाल में, उसमें डीपी यादव का बेटा भी है, और वो नीरज कटारा केस जो है, वो सब में तो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे. कैसे हो गया केस सॉल्व? कैसे सॉल्व हो गया? उसमें सब पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे. सर वो तो विटनेसेस मिल गए ना. नहीं, उसमें तो क्योंकि सॉलिड विटनेसेस वर अवेलेबल, दैट इज व्हाई ही कुडंट एस्केप. Who said कि नीतीश कटारा में विटनेसेस वर अवेलेबल? नीतीश कटारा का केस आई डोंट नो. हाँ, तो that is the problem. नीतीश कटारा केस में भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, जसिका लाल केस में भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं. Okay, sir, out of 10 cases where politicians are involved, 7 cases are not ever solved. अगर 3 हो गए हैं तो उसका क्या बहुत बड़ी बात नहीं है.
नहीं हुए ना। मैंने आप ऐसा नेगेटिव पिक्चर और पेसिमिज्म वाला पिक्चर प्रेजेंट करोगे बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस केस दुनिया में, देश में, अगर ज्यादातर केसेस पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ बोल रहा हूं, अगर आप जाके उनका रिकॉर्ड को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन लोग स्कॉट फ्री निकल जाते हैं। लालू प्रसाद यादव वेंट टू जेल, लो, या नहीं गए वो जेल? Sir, because the opposition party No, got he him was into not in jail. opposition. Who told you he was in opposition at that time? Yes. No, you are wrong. You're factually wrong. You are factually wrong. बीजेपी रूल नहीं कर रही थी उस टाइम, उन्हीं की अपनी अलायंस रूल कर रही थी. He was very much part of the government. तो उन्होंने अपने, उनके आपस में दुश्मनी होगी ना, they wanted him out of the picture. It's all politics. सर आप पॉलिटिक्स तो, आप तो पे फॉर पॉलिटिक्स करते हो, आपको पता नहीं है पॉलिटिक्स की गेम कैसे होती है. It does play, but it doesn't happen कि स्वीपिंग की जिसमें कोई पॉलिटिशियन आ गया उसमें कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा होता तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे ऑर्डर होगी? No, because there was public pressure, they had to do it. There you are, exactly the point. Now you have come to the bottom line. No. Public का But I also want to, सीबीआई आ गई, तो मैं कह रहा हूँ अभी आप पब्लिक प्रेशर डालो, 302 भी हो जाएगा. पब्लिक प्रेशर डालो ना. Okay, I agree with you on that aspect that maybe it needs to be reopened. But sir, इस केस में इतने सीनियर लोग इन्वॉल्व हैं कि कितना मर्जी प्रेशर डालो कुछ नहीं होने वाला. एक मिनट ना, this is taking a too pessimistic view of it. अगर ऐसे सोच रहे होते, एक मिनट, मैनी 1 सेकंड, अगर ऐसे ही सोच रहे होते तो पहले दिन से ये कैंपेन बैठ गया होता. ऐसे नहीं होता है. आपने सीबीआई, आपके प्रेशर का नतीजा है सीबीआई यहाँ पर है, आपके प्रेशर का नतीजा है कि ईडी यहाँ पर आ गई. कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें सीबीआई भी आ जाती है, ईडी भी आती है, एनसीबी भी आती है, मुंबई पुलिस भी आती है, बिहार पुलिस भी आती है? किसी केस में नहीं होता है. डिफरेंस कल में और आज में सिर्फ ये है कि कल मैनी ओपनली जमीन पे उतर, मैनी से मतलब नॉट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसआरियंस. कल एसएसआरियंस जमीन पे उतर रहे थे, लॉकडाउन में भी हल्ला कर रहे थे, पूरे दुनिया से खड़े थे. आज वो किचन में बिलीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं सुशांत के बारे में, लेकिन उतरने को तैयार नहीं. बाद में देख लेंगे सर, शो आएगा ना सर, बाद में देख लेंगे. तो बाद मतलब प्रायोरिटी नहीं है आपका. आई डू नॉट नो वेदर यू पीपल एग्री और नॉट, दिस इज हाउ आई थिंक. आपका प्रायोरिटी सुशांत सिंह राजपूत आज के डेट में नहीं है. दैट्स नॉट योर प्रायोरिटी नंबर 1. दैट्स हाउ आई थिंक. नीना मैम, यू एग्री? what is I think Priya, right? Priya, you agree or not? Please, whatever you want to say, please go ahead, because I don't agree with what Manny is saying. Okay, so one more thing I want to say, but then I'll have to go. Yeah, please. Is no, what stay on, Manny, stay on. There's no hurry. Don't be in a hurry. No, I have to go. Yeah, go ahead. Yeah, sir. Yeah. तो जो पब्लिक का जो पहले था वो सच में कम हुआ है. मतलब ऐसा नहीं जैसे अभी मेरे भी मन में इतना है, पर वो रास्ता ही नहीं पता कि हम भी क्या करना चाहिए, वो कैसे करें, क्या करें. अब सर एक और चीज मेरे मन में आ रही थी कि वो परमवीर सिंह तो पिक्चर से ही गायब हो गया. परमवीर कल परसों मैंने एक न्यूज में सारे केसेस ड्रॉप हो गए. हाँ सर, वही उसका न्यूज भी देखा. अगर परमवीर सिंह ने मिस्टर अनिल देशमुख के अगेंस्ट में चिट्ठी लिखा तो फिर उस टाइम उनको सारी चीज में उनको लटका दिया गया. तब तक तो बड़े अच्छे थे. अब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने परमवीर सिंह का सारा क्लियर कर दिया. हाँ सर, वो reinstated. बट परमवीर सिंह सर उस पे भी इंक्वायरी होना मतलब चाहिए था लीगली. परमवीर सिंह पे तो सबसे मेन की तो वही था. किसलिए होना चाहिए था? अब सर उसने डे 1 ही बिना पोस्टमार्टम के आके बोला सुसाइड है. परमवीर सिंह वाज द चीफ पुलिस कमिश्नर. ACP said. Yeah. He didn't say. He never said anything. It was ACP who was there at Sushant's house who said 45 minutes में that is a suicide. और सर एक बार और हुआ था, कुछ जो जर्नलिस्ट गए थे उनके ऑफिस में, परमवीर सिंह थोड़े से अपसेट और एंग्री भी थे, रिपब्लिक को भगाया भी था, तब बोला था कि ये सब कुछ भी नहीं है, सब मनगढ़ंत है, ये सब कुछ उन्होंने बोला भी था. Yes, उन्होंने ये भी बोला था that it is all a public creation, media creation, social media creation. Sushant Singh Rajput was a simple case of suicide, right? Yes. But I am saying that he said is sometime in August, I think, if I am not wrong. Later on. Sometime in August he said that. But मेरा point है कि ये बात को कैसे हम माने कि परमवीर सिंह said that on his own, or was he instructed by the then Home Minister, Mr. Anil Deshmukh, who was interfering in so many influential cases, important cases? ये केस कैसे पता चलेगा? कौन इसको केस को टेम्पर कौन कर रहा था? उस वक्त की एनडीए गवर्नमेंट
या पुलिस या कोई और, यही तो पता करना है ना आखिर हुआ क्या। तो सर वही कि सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं, सीबीआई ने परमवीर सिंह के साथ में ये सब, और होना चाहिए था, तो सीबीआई आ चुकी है। वो तब होगा प्रिया जब लोग इस बात को बार बार उठाएंगे। घर में बैठ जाने से कोई भी सवाल का जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग सब बोल रहे थे, पब्लिक चुप हो गई ना, हम भी चुप हो जाते। पब्लिक है जिसके कारण लोग बोल रहे थे, पब्लिक है जिसके कारण हो रहा था, पब्लिक शांत, सब कुछ शांत। ये बात तो है। No, sir, I also want to point out that that person who was in that Cooper hospital who came with that evidence के सुशांत सिंह राजपूत का, उसका क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ही चुप हो गया, वो तो गायब हो गया एकदम। एक मिनट, वो क्यों बोलता रहेगा? मेरा सवाल तो आपने शायद नो सुना नहीं है। वो नहीं मैं बोलेगा। कह रहा हूँ कि एक आदमी, लिसन टू आंसर, एक आदमी रूप कुमार शाह दिसंबर 26 को आता है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को मैजिस्ट्रेट के सामने कौन रिकॉर्ड कराएगा? वो खुद तो जाके रिकॉर्ड नहीं करेगा, करेक्ट? तो यही कौन कराएगा? किसने कराया? किसी ने कराया? I'm answering, नीना मैम। देखिए, 2-3 तरीके हैं चीजों को करने के। पहला ये कि उस आदमी का स्टेटमेंट या तो मुंबई पुलिस रजिस्टर कर सकती है, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। दूसरा, सीबीआई रिकॉर्ड कर सकती है, सीबीआई ने नहीं किया, ठीक। हमको कैसे पता है? हाँ, नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, नहीं रिकॉर्ड हुआ, हमारे नॉलेज में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, अदरवाइज हमको पता होता रिकॉर्ड हुआ। जैसे आपको नहीं पता ना कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, वैसे ही मुझे पता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब जैसे आपको लगता है शायद हो सकता है हो गया हो, मुझे लगता नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो अब तक रिपोर्ट हो गया होता कि रिकॉर्ड हो गया। बट मेरा पॉइंट है, अगर मान लो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया, मान लो, तो फिर आपके पास रेमेडी क्या है? आप क्या करोगे? फैमिली विल गो टू द पुलिस, गो टू द कोर्ट एंड से इस आदमी का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करो, वरना ये कल पलट जाएगा, ही विल टेक अ यू टर्न। तो ये फैमिली ने ये भी नहीं किया, तो तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। एग्जैक्टली आपने जो इतने क्वेश्चंस हमको किए हैं, तो मेरा तो आंसर आपको ये है कि ये तो फैमिली को लीड करने की बात है। हम पब्लिक जितना भी चिल्लाए, लेकिन लीगल एक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक फैमिली फ्रंट में नहीं होती। हम लोग ऐसे साइलेंट बन के जितने भी चिल्लाते रहे, जितने भी हम लोग स्लोगन देते रहे, जितने भी हम लोग हैशटैग लगाते रहे, डिजिटल फाइट करते रहे, डिजिटल फाइट से कुछ नहीं होगा। ये तो कोविड के लेकर के हम सब डिजिटल फाइट में बैठे हुए। अब क्या है, अब तो सब खुल गया है। क्यों फैमिली सामने नहीं आती? क्यों रोड पे डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं होते हैं? You agree with this, Manny? What she's saying, do you agree with this? Sir, I'm this sure is their personal family matter. They have to stand up if they want justice for their son. No, so I'm sure we will support them. Of course, we will support them. Digital campaign by SSRians will not work. Is that it has worked to an extent? It will work to an extent. Now I'm talking third year. Abhi, it's time for family to take some, physical actions, like सुप्रीम कोर्ट में जाए या केस को कुछ आगे बढ़ाए। अभी आज मैंने भी पढ़ा, वो उनके कौन लॉयर है, उन्होंने कहा कि सीबीआई इज गिविंग दिस केस अ स्लो डेथ, दे आर ट्राइंग टू क्लोज दिस केस एज अ स्लो डेथ। तो ये एक इंडिकेशन आपको क्या मिल रहा है कि ये केस आहिस्ता आहिस्ता बंद होने जाने वाला है, तो आप लोग सब प्रिपेयर्ड हो जाइए। नहीं, they can't just close the case without This giving is what the proper conclusion. विकास सिंह का अभी मैंने पढ़ा थोड़ी देर आगे, उन्होंने ट्विटर में एक स्टेटमेंट उनका आया है, किसी ने डाला है। और मैं एक और बात बोलूं, उनकी सिस्टर को, आई थिंक श्वेता सिंह को, शायद बिग बॉस में किसी में इनविटेशन आया था। उसके हस्बैंड ने आज इंस्टा में उसका क्लैरिफिकेशन डाला है कि हाँ उसको आया था लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। इज गिविंग क्लैरिफिकेशन फॉर बिग बॉस वाज सो इम्पोर्टेंट? तो यहाँ तो कितने सारे जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे, तो उसके क्लैरिफिकेशन आप देना। वो तो आप लोग कोई दे नहीं रहा हम लोग को। तो हमको तो नहीं पता कि सुशांत क्या हैंगिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था। उसको पोस्टमार्टम के लिए किसने परमिशन दी, रात को फैमिली ने दी कि नहीं दी, उसके बॉडी में ड्रग्स मिला कि नहीं मिला, ये तो सारे फैमिली को क्लैरिफिकेशन नहीं देते। और आप बिग बॉस का क्लैरिफिकेशन देने के लिए आप पोस्ट लिख रहे हैं। नहीं Nina, when Priya had come in one of the interviews in the media, she made it very clear by speaking loudly that my brother can never take such a step. ठीक है, we agree. Yeah. But
I'm sure family एक has their बात, own लेकिन अभी restrictions. like that is just an example I gave. Okay, Many, okay. there's If so I many questions let which me is counter going into let me counter lot question. of people's Nina, mind. Nina ma'am, let me counter question. If family believes that it's a case of murder, correct? That's what family believes. They don't believe Yes. it's a suicide. He can never commit suicide. My point is, all right, I can understand to July 2020 you filed a case of avertment of suicide in Patna because of the jurisdiction issue. कि आप मुंबई में करते तो मुंबई में मुंबई पुलिस उनके अंडर में थी, गवर्नमेंट दूसरी थी, वो दबा देती. पटना Right, में we करते थे, understand. केस दबा नहीं. ये मान लिया मैंने 2020 में. आज क्या हो रहा है? Why are they not going for recording the statement of a key witness like रूप कुमार शाह? कल रूप कुमार शाह यू टर्न ले लेगा, फिर क्या करोगे आप? खत्म हो जाएगा केस. Exactly. आपके पास एक आदमी और है वो कह रहा है हाँ इंजरी थी, हाँ वो स्ट्रैंगुलेशन के मार्क थे, क्यों नहीं मजिस्ट्रेट के सामने जाकर फैमिली जो है रिकॉर्ड आपने करवा रही इसको है, रिकॉर्ड करवाया, एप्लीकेशन डाल के कि आप रिकॉर्ड करो. अभी कौन सा exactly. मुंबई में गवर्नमेंट बैठी हुई है एमबीए की? अभी तो बीजेपी की है ना. Exactly. उनके आप एमएलए देखिए ना, उनके कजन है ना, सुशांत हाँ, के कजन यही तो बीजेपी मैं बोल रही एमएलए. हूँ, अभी तो दे हैव strong Then political background. so what is preventing the family from going and demanding the recording I of don't Rup Kumar understand. Shah's statement? 6.5 महीने से क्या कर रहे हैं? Is I this don't the way understand. case खाली will you digitally will know? Is ट्विटर this the way में you और will know इंस्टा कि में who murdered Sushant Singh Rajput? If at all he was murdered, वो who murdered Sushant? ऐसे पता चलेगा क्या? सर और exactly. नीलेश राणे सर नीतीश राणे के ट्विटर लिए भी में और फैमिली ने इंस्टा कुछ में आवाज खाली नहीं उठाई पोस्ट, कि इनका वो तो स्टेटमेंट भी आप सब लिखो. नहीं, वो तो उनसे नितेश तो राणे ने बोला, उनसे तो नितेश रिक्वेस्ट राणे की ने थी, जब वो उनसे रूप कुमार रिक्वेस्ट शाह की आए थी थे प्रियंका ने. तो नितेश राणे नारायण ने बोला कि इसका स्टेटमेंट तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए. लेकिन लीगली प्लीज अंडरस्टैंड, लीगली व्हाट नीना मैम इज सेइंग इज करेक्ट. लीगली ओनली द फैमिली कैन मेक अ लीगल रिक्वेस्ट, नो वन एल्स कैन मेक इट. No one else can do it. हम क्या करेंगे? हम चिल्ला चिल्ला के वो ढोल बजा के पीट के रह आप लोग जाएंगे, क्या कुछ कर नहीं सकते हो, होगा. मैं वो कह रहा हूँ, आप लोग क्या कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग कैंपेन चला सकते हो, आप लोग 302 डिमांड कर सकते हो, आप लोग रोज हल्ला कर सकते हो, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स ओनली एंड ओनली द फैमिली कैन टेक. लेकिन इस मोमेंटम को भी हीटेड रखने के लिए फैमिली सपोर्ट की जरूरत है सर. अगर आप एकदम ठंडे बैठे होगे बट दे आर सेइंग कि वी आर सपोर्टिंग. वो कह रहे हैं कि हम ट्वीट कर रहे हैं, हम खड़े हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए. लेकिन मार्च के बाद आई थिंक अप्रैल से प्रियंका जो मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वीट देती थी वो उसने अप्रैल से बंद कर दिया. क्यों नहीं दे रही पता नहीं है. पायल व्हाट डू यू थिंक? पायल अपना आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है मामला, ये कुछ होगा कि नहीं होगा? हेलो सर, हेलो एवरीवन. मैं जो एक बात इसमें कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा केस है जहां पर पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टी, फैमिली, देन सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, इतने सब कुछ एक ही केस में है. तो सिर्फ पब्लिक नहीं और सिर्फ फैमिली नहीं, गवर्नमेंट को भी अगर इस केस को चाहते हैं कि सॉल्व करना है तो उनको भी सामने आकर करना होगा. क्योंकि बहुत बार ये इंडिया है, जो प्रैक्टिकल है सो प्रैक्टिकल है. ये इंडिया है, इंडिया में अगर पॉलिटिकली कुछ बेनिफिट मिलता है पॉलिटिशियन को तो वो लोग आगे आगे करते हैं. और अगर उन लोगों को नहीं मिलता है तो वो लोग उस केस को डिले करते हैं. ये ही स्ट्रेटेजी है हम लोगों की, इंडिया की. तो इस केस की बेनिफिट यही था कि पब्लिक पहली बार आकर इस केस को फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक में पुश किए थे. लेकिन ये पब्लिक है, ये कितना इंतजार करेगी? ये सीबीआई को भी ये सोचना चाहिए. उनको क्या कर रहे हैं इन डिटेल्स कुछ नहीं बताना चाहते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं. I am a journalist, so I don't speak that way, but hypothetically I am an SSRian. मैं क्या करूंगा इसमें? मुझे मालूम है अगले साल इलेक्शन है, राइट? अभी अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे. अभी अगर मैं हीट जनरेट करूंगा, लोगों को पता है कि करोड़ों लोग हैं, अगर आप नहीं काम करोगे, नहीं बताओगे तो हम वोट नहीं देंगे, आपको हरवा देंगे इलेक्शन. अपने आप गवर्नमेंट मजबूरी में काम करेगी. तो अगर आप ही चुप हो जाओगे, क्यों गवर्नमेंट प्रेशर फील करेगी? क्यों पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर फील करेगी? सर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ये कोई भी एक ऐसी चीज नहीं, कोई मशीन नहीं है कि चाबी घुमाएंगे पब्लिक फिर से खड़ी हो जाएगी. पब्लिक की जो बुशटक थी, जो आग थी ना, वो बहुत हद तक ठंडा हो चुका है. क्योंकि आफ्टर कोविड सब कोई अपने अपने काम पर व्यस्त हो गया है. तो इसीलिए उस टाइम पे क्या था कि लोग फ्री थे. ये प्रैक्टिकल बात है. अगर मतलब कोई ऐसे बोले कि ऐसे ही हो गया, नहीं हुआ है.
कोविड के टाइम पे पब्लिक ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटरनेट पे सर्फिंग करने में और ट्वीट करने में, पोस्ट करने में टाइम लगाते थे, जो अभी प्रैक्टिकली एक इंसान सुबह से रात बजे तक वो ऑफिस में काम करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा एक ट्वीट करेंगे। Listen to me. ये सब ना, these are all mere excuses. Why? I will tell you. जब निर्भया हुआ था तो कौन सा कोविड था? क्या था क्या? नहीं कोविड नहीं था, लेकिन कोविड था क्या? नहीं। जब वो केजरीवाल का वो अन्ना हजारे का मूवमेंट हो रहा था तब क्या कोविड था क्या? नहीं सर, एक मिनट, नहीं, वन मिनट। सो उस वक्त पब्लिक सड़क पे आई ना, आई कि नहीं आई? तो आपको सुशांत सिंह राजपूत का कैंपेन ड्राइंग रूम से चलाना चाहोगे, हर वक्त नहीं चलेगा ना। कोविड में था कि ड्राइंग रूम से चल गया, अभी तो अब तो कोविड नहीं है, सड़क पे आइए ना। आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आते हो? नहीं आ सकते ना, क्योंकि इस कैंपेन को चलाने वाले सब लोग एलीट लोग हैं। इनको ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करना है, इनको ड्राइंग रूम में बैठ के चलाना है कैंपेन। ऐसे नहीं चलेगा कैंपेन, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। रिजल्ट लेने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। जिस केस में लोग उतरे जस्टिस मिला है, जिस केस में नहीं मिले उतरेंगे तो वो विकास सिंह का स्टेटमेंट क्लियर है कि सीबीआई इज गिविंग यू अ स्लो डेथ। ये सीबीआई स्लो डेथ नहीं दे रही है, हर एक मीडिया, सोशल मीडिया, एसएसआरियंस, फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, गवर्नमेंट, सब लोग स्लो डेथ दे रहे हैं। क्यों? कोई भी अपने क्वेश्चन से बाहर आना नहीं चाहता है, सबको आराम से ये जस्टिस चाहिए। यस सरवनी, गो अहेड। सर एक मिनट, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आई विल गिव यू अनदर चांस। कंप्लीट। ओके, हाँ नहीं सर, पब्लिक को मैं सबको छोड़ देती हूँ, सबको साइड पे दे देती हूँ। ये रूप कुमार शब्जा जब आए थे तब फैमिली के कोई एक भी पर्सन उसको लेकर कहीं पर जाकर स्टेटमेंट दिलाए हैं क्या? मुझे ये जानना है। नहीं दिलाए, नो। यही सबसे बड़ी क्वेश्चन है हम लोगों के एक्सटेरियंस के, क्योंकि वो लोग क्यों नहीं, हम लोग तो हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं सामने आकर ये कुछ करते हैं ताकि पब्लिक भी बूस्ट अप हो कि हाँ फैमिली कुछ कर रहे हैं तो हम भी पहले जैसे कुछ कर सकते हैं। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे लग रहा है कि फैमिली भी ठंडा है एकदम। ओके वेट, जस्ट हैंग ऑन पायल, जस्ट स्टे ऑन, अभी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जस्ट स्टे ऑन। यस सरवनी, गो अहेड। Sarvani and then Sasmita, both of them have joined. Yes, Sarvani first, you were trying for long. एक सेकंड Sarvani, आप म्यूट पे हो। Yes, great कि बहुत दिन बाद we are all connecting again on this day, remembering Sushant. So it's really an emotional day for all of us. Our fight started on this day and we are still fighting. I know जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मैं पक्के से एग्री करती हूँ कि कुछ हमारा एनसी जो है वो डाउन हुआ है। इट्स नॉट एज मच एज प्रोएक्टिव जब हम लोग स्टार्ट हुए थे, बट वी आर स्टिल फाइटिंग। जहाँ पे भी कोई भी मौका मिलता है कुछ थोड़ा सा भी एफर्ट डालने का कि यू नो गेट बैक टू दिस थिंग, हम लोग कर रहे हैं, बट नॉट ऑन दैट मैसिव स्केल जैसे हमने स्टार्ट किया था। सो यस, थोड़ा सा तो हम भी डाउन हो रहे हैं एज अ फैंस। What do you do next 1 year? I don't know sir, I'm just waiting for justice, praying कि हर दिन कि शायद कुछ ऐसा कमाल हो कि जस्टिस कोई ट्रेन तो है नहीं कि चल के पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी। सॉरी सर, आपका वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है मुझे। I'm not able to hear what you're exactly saying. I don't know. Increase the volume of your set, whatever you are using, phone or laptop. Others can hear me, right? Okay. So Sarvani, what I'm saying is कि कोई जस्टिस तो ट्रेन तो है नहीं कि वो एक स्टेशन से निकली और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो जस्टिस कैसे मिल जाएगा? बगैर आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के जस्टिस मिल जाएगा? नहीं सर, जस्टिस के लिए फाइट तो करना पड़ेगा। हम लोग ऑनलाइन फाइट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू फाइट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली फैमिली है जो जिनको थोड़ा ज्यादा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा खुद अपने भाई के जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए। फैंस के वजह से आई वुड से कि जितना हद तक हो सकता था हम कर पाए। वी वर सक्सेसफुल फॉर यू नो लाइक in quite a bits we could get our things done and our voice heard. तो जिस तरह से हम लोगों ने कंटिन्यूसली अपील किया था, सीबीआई का हो या ईडी जो भी आए, वो आई वुड से कि उस समय जो भी इंक्लूड हुए थे इस फाइट में,
वो सिर्फ और सिर्फ हम फैंस की वजह से था। फैमिली तो तब बिल्कुल चुप थी। अभी बीच-बीच में उन लोग आ तो रहे हैं, कुछ-कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है कि कुछ हरकत हो रहा है। बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, शायद फैमिली अगर उस समय थोड़ा और कुछ करती तो आज हम लोग रुद्रभा, आई थिंक रुद्रभा मुखर्जी सेइंग सर प्लीज फैमिली को मत बोलिए। फैमिली को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बट ये सवाल तो बनेगा ही और सवाल लोग पूछेंगे ही। एंड ऑफ द डे ये फैक्ट है कि लीगली केवल और केवल फैमिली परस्यू कर सकती है। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। हम लोग कुछ भी कर लें, हम जाकर पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। दैट्स अ रियलिटी ऑफ दिस केस। अब कोई कुछ भी सोच ले, कोई आई थिंक शी हैज ऑलरेडी ज्वाइंड, सो इफ शी हैज ज्वाइंड वी विल कनेक्ट हर। Rudra Prabha is joining, so let her connect. But fact remains that without the family, किसी भी क्राइम केस का क्रिमिनल, जिसमें क्रिमिनल केस होता है, दो तरह के नेचर होते हैं, एक सिविक केस होता है और एक क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस में पार्टी इंटरेस्टेड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी तो बाकी तो कोर्ट डिसमिस कर देगा दूसरे को कि यू आर नॉट द इंटरेस्टेड पार्टी, फैमिली इज द इंटरेस्टेड पार्टी। सो ये बात फैमिली से सवाल पूछने की नहीं है, ये बात सिंपल है कि अगर कोई एजेंसी नहीं कर रही है, सब सो गए, तो why is the family not taking initiative? If family also doesn't take initiative, एक साल 2 साल और निकल जाएगा, and then the question will come कि सीबीआई इंटरेस्टेड नहीं थी, बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं थी, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी, कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं थी, what do you call, बिहार पुलिस इंटरेस्टेड नहीं थी, मुंबई पुलिस इंटरेस्टेड नहीं थी, शायद फैमिली भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ये जरूर आएगा 3 साल बाद। Yes, sir. Definitely. That is why we are talking about the family. I agree with you, sir. But वही है कि हम लोग अभी भी स्टिल लड़ रहे हैं एंड होप है हम सब में कि 302 शायद आए। So Sarvani, just stay on. Sarvani, just stay on. I'll come back to you. Sasmita, yeah, please go ahead. Sasmita, you are on screen now. You can speak. Yeah. Sasmita, I can't hear you. Oh, can you hear me now? Yes, I can. Yes, go ahead. Okay. सबको नमस्ते। आज मैं बहुत दिन बाद आई लाइफ में। आई थिंक She got disconnected. Okay. कोई बात नहीं. Yes, yes, Manny, it's your turn. 1 second. Yes, Manny, go ahead. So, sir, besides, of course, justice for Sushant and everything, I also would like to say that the very fact that, all the people who had initially joined in his fight, some of us are seeing each other after a very, very long time. I think the last time I joined your platform was last year on June 14th. And I'm seeing Sarvani and Payal and everybody. After 1 year? Yeah, after 1 year. So, what I want to say is that, the legal justice is something that the family and the government, when there was such a demand from the public to find and solve the mystery of Sushant Singh Rajput, the government has not responded. Neither have these agencies have responded. They've all broken the trust of the public. And they have kind of disappointed us in a very, very large manner by just, saying ED has come into the picture, the NIA has come into the picture, and all the other agencies have come, and it's such a big case, and this, that, and the other. The point is, why should there have to be pressure from the public to get justice in this country? There is a case that that public really demanded to be solved, and everybody is disappointed because there are some very powerful vested interests who don't want this case to be solved. Now, besides that, I also want to say that look at the impact of Sushant Singh Rajput. For me, the recognition he has got, and we are still coming here after 3 years, we still want that justice for how many actors in the history of Bollywood or even worldwide have actually left this kind of impact. It was just a youngster of 34 years of age. Does that answer the question? What happened to him? देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने अगर इस मतलब ये कंक्लूजन के साथ जाएंगे तो सुशांत की कहानी वही हो जाएगी जो दिव्या भारती की थी. Divya Bharti was equally a big phenomena. 90s, you know the period when she died, right? There was complete madness because people were huge fans of Divya Bharti.
तो अगर ये कंक्लूजन से जाएंगे तो सुशांत सिंह राजपूत केस विल बिकम अनदर दिव्या भारती. We don't want that. We should know what happened to Sushant Singh Rajput, this way or that way. Yeah, what you're saying, yeah. Not कि आपने बोल दिया कि it's a suicide और ये बात खत्म हो गई. आपको suicide भी बोलना पड़ेगा, तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा. How, when, where, why, what. Yes. You just can't call it a suicide just like that and not expect any explanation from us. That won't happen. But you will see that if CBI comes up with this conclusion, there will definitely be people on the road. I can bet on it. Let this conclusion come by CBI. Even if people are busy in their lives, there will be a huge revolt against such a situation where they will come with the conclusion of suicide and they will not give explanation. Explanation क्या उनके पास होएगा ही नहीं कुछ भी, because just the height from the fan to his body only doesn't make sense. I think Sarvani wants to counter. Yes, Sarvani, please go ahead. Yeah. Yes, sir. So sir, I'm sorry, Sarvani. One second. Just hang on. Man, just one second. Yeah. Go ahead, Sarvani. सर आई कम्प्लीटली एग्री विथ मैनी बिकॉज अगर सीबीआई हमें थोड़ा सा भी एक होप देती है तो देन यू विल सी अगेन अ होल क्राउड गैदरिंग फॉर सुशांत एंड कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट. अगर होप नहीं देती है वी आर स्टिल देयर सर, बट ऑफ कोर्स अभी एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, यू नो, लाइक लाइफ भी चल रही है पैरेलली. इट्स नॉट जस्ट ओनली दैट, बट एक बात तो मैं कहूँगी सर कि ब्लेसिंग था कोविड हमारे लिए फॉर टू फाइट फॉर सुशांत, बिकॉज वी ऑल कुड रियली put our heart and soul in that and we were completely concentrated on that one thing and our goal was to get the justice for him. But abhi situations change ho rahi hain, so everyone has to get back to their life as well. I will tell you why this happened. सुशांत सिंह राजपूत केस में दूसरे केस में फर्क क्या है? सुशांत सिंह राजपूत केस का जो कैंपेन है that was largely driven by women and women need time, and because COVID lockdown ensured that everyone was home, women had time to be part of this campaign. Abhi kya hua hai, because women have a lot of other responsibility, they are not able to fully dedicate their time to this, and that's why you don't see so many people coming and speaking. अब कल फिर लॉकडाउन लग जाए किसी कारण से तो the same women will be more than willing to speak on this topic, unlike other cases जहां पर maybe it was driven by youngsters, it was driven by men, तो वो स्ट्रीट पे तो चले जाते हैं. विमेन के लिए केस में स्ट्रीट पे उतरना इतना इजी नहीं है इंडिया में. दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अदर केसेस एंड दिस. हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि पहले जो मुझे मैसेजेस आते थे या जो कमेंट्स आते थे और आज जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैनी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. यू आर सपोर्टिंग इट, दैट ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड. बट जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ ना, उनमें से 50% कमेंट से होता है सर वी हैव कंक्लूडेड नथिंग विल हैपन. सो अगर कल सीबीआई ने ये कंक्लूजन दे दिया हाइपोथेटिकली कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड, तो वो जो 50% है, काउंट देम आउट. दे विल से हमें पता था यही होने वाला है. ओनली द रिमेनिंग 50% विल बी एक्टिव, व्हिच इज पीपल लाइक यू. यस मैनी, गो अहेड. No, sir, I don't agree with you at all. The thing is that we have not given up on the fact that that Sushant has committed suicide. The moment CBI will come and say this, why do you think they're not coming and saying it? The moment they will come and say it, there's going to be a huge different story. आप देखते रहना, बोल के तो देखें वो जरा एक बारी भी. They don't have the guts to say it because they don't have enough evidence to support it. जब तक सीबीआई नहीं बोलेगी तब तक फिर से चुप हो जाएंगे सब. नहीं, उस आप चुप सर, साइलेंस को अंडर एस्टिमेट मत करें आप. 14 June 2022, 14 June 2023. Next we meet on 14 June 2024. सो सर हमारी कंसिस्टेंसी तो देखो, हम फिर भी टाइम निकाल कर आ रहे हैं ना सुशांत के जून 14 के लिए. सर जो मैनी बोल रही है वो करेक्ट है सर. हम लोग अभी जो चुप हैं, दिस इज लाइक अ साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म. वो स्टॉर्म जब आएगा ना, यस बिल्कुल सर, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझना सीबीआई और किसी की भी गलती होगी. नीना मैम आप क्या कह रहे हैं? I don't agree because I wish and I pray
कि सुशांत को जस्टिस जरूर मिले, और हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी मतलब हम लोग सब ये इतने साल 3 साल से जो लेकर बैठे हैं, ऑफ कोर्स वी डू वांट, बट वी नो आवर जुडिशियल सिस्टम, वी नो आवर हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो सिस्टम है, and when this case is such a high profile case where there's political Bollywood बोलिए या दूसरे कबाज whatever, everybody is involved, it is very very difficult to get justice. It's not impossible, but it is little difficult. जैसे आप जिया खान का देखिए, उसकी मदर FBI तक गई, कितना कुछ उसने किया, लेकिन क्या हो आखिर में, और अभी वो चिल्ला के बोल के भी क्या कर सकती, कुछ कर सक रही है, बिकॉज दीज आर द सेम पीपल। जुलाई 23rd July or 24th July 2020 there was this lady on my channel। वो कितने सालों से। मीना मैम सुनिए, आपके लिए है, अभी के लिए है। जुलाई 23rd 2020 और 24th July 2020 वीडियो होगा, निकाल के देख लीजिए। आई वाज डूइंग द शो एंड समवन केम एंड टोल्ड मी इन द शो कि अगर मान लो सब चुप बैठ जाएंगे ना, तो हम तो रोज आके 10 साल तक भी बोलेंगे। टू हियर दिस कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन कि हम लोग कर क्या सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है। जो 10 साल लड़ने को तैयार हो, वो 3 साल में गिव अप कर दे, तो ये केस अपने आप कमजोर होता है। मैंने तो आपसे कहा ना, हम अभी भी नहीं, मैं आपसे यही बोल रही हूँ, हम लोग तो अभी भी है, वी आर स्टैंडिंग फॉर हिम एंड वी विल स्टैंड फॉर हिम, बट सीइंग द हमारी कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जिस तरीके से केस को इन लोग नल एंड वॉइड कर देते, जो हम देखते आ रहे हैं हमारी आंखों के सामने। इफ आई सी दैट, इफ आई कीप दैट इन माई माइंड, आई हैव अ डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं होगा, आई हैव अ डाउट। जब जिया खान की मदर इतने सालों तक लड़ती रही, उसके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी बैकिंग थी, उसने हर तरीके से कोशिश की, इट्स नॉट ओनली द इंडियन गवर्नमेंट, शी ट्राइड द ब्रिटिश के जो FBI या जो भी, उसने हर तरीके से उसने वहां की CBI को इन्वॉल्व किया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन हुआ क्या, यही सारे लोग अभी भी इन्वॉल्व है। तो वो कुछ कर तो नहीं पाए ना। Yes, Manny, quickly you complete, यहाँ तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, यहाँ तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। Manny complete and then she wants to leave, so let her quickly complete and then we'll go to Sasmita and Madhu, they are both there, and then Rinku. Yes, Manny. Yes, sir. So sir, in conclusion I want to say one thing. I don't know what Neena ma'am said. मैंने तो आपको 3 लेवल का जस्टिस के बारे में बोला था। The legal justice, recognition and law of karma I have called poetic justice as well. मेरे हिसाब से poetic justice भी हो रहा है, मेरे हिसाब से सुशांत को recognition भी इतना impact किया उसने सबको कि आज तक हम आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। लीगल जस्टिस जो है वो हमारे यहाँ पब्लिक के हाथ में तो है नहीं, तो वो फिर भी हम we will wish for the best to happen. क्या कहते हैं, देर है अंधेर नहीं। एक वक्त था कि आप लोग तो पोएटिक जस्टिस को रिकॉग्नाइज करने को भी तैयार नहीं थे कि पोएटिक जस्टिस क्या होता है। नीना में बोलते ये सर पोएटिक जस्टिस क्या होता है, पोएटिक जस्टिस से क्या होगा, हमको डायरेक्ट जस्टिस चाहिए। आज आप लोग पोएटिक मतलब जब नो आप मैनी की बात करो ना, जब रेस नहीं जीतो तो हमने उसको भी माना था। नहीं मैनी से बात करो, रेस आप नहीं जीतो तो कंसोलेशन प्राइज से खुश हो जाओ। तब मैं कंसोलेशन प्राइज दे रहा था, बोल रहा था पोएटिक जस्टिस है, तो आप में से कोई सुनने को तैयार नहीं था। नहीं ये पोएटिक जस्टिस। आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी सर, आप गलत बोल रहे हो। आप वीडियो रिवाइंड करके देख लो। मैंने सबसे पहले यही बोला, आपका भी वीडियो रिवाइंड करके देखो। Pick up, you picked up poetic justice. You were the first to pick up poetic justice from me. No. That is there in the video. Please take it out. No. I picked up poetic justice from myself. No. Law of karma. I will tell you. I will send you the clipping. Don't worry. Yes. Please do. My memory is very sharp. I will. Please do. My memory is also sharp. Okay. Thanks. Sir को कुछ नहीं मिलता तो सब मेरे पे डाल देते। Yeah. So in the end, I would like to say that Sushant has left an impact with all of us, and I think I have great respect for him. The more I discover him, the more I have respect for him. He was definitely somebody very, very special, and I think we should try and see his movies, his work, and try and kind of live the kind of life he wanted all of us to live. So on that note, I will probably see you again whenever good news will come. Thanks man. But thank you so much. Thanks. Yes, who goes next? Madhu. She is trying very hard. She'll get disconnected. Yes, Madhu, please go ahead.
Sasmita, just hold on. I'll coming to you. I'll give you sufficient time. Don't worry. Yeah, Madhu, go ahead. Madhu, बोलिए. Madhu. Madhu, can you hear me? मधु, आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो हाँ मधु, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बोलिए. हाँ सर, मुझे बहुत सारी मधु प्लीज गो अहेड. मधु बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं सब लोग. यस सस्मिता, प्लीज गो अहेड. हार्ड लक. आई थिंक आपका नया प्लेटफॉर्म में कुछ तो गड़बड़ है. आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड सो मेनी टाइम्स. No, प्लीज गो अहेड. It will we are connecting after a long time ना. See, the platform Yes. looks so smart. आप लोग कैसे बोल, इतना स्मार्ट लग रहा है platform. It does look very smart. It looks smart, no? So this is what Sushant has gifted us. Yes. If I would not have started one of the many gifts. Yes. One of the If many I would gifts. not have done his shows, I would not have taken this platform. And if this platform is looking nice, it's because of him. Yes, go ahead. Please go ahead. ऐसा नहीं है कि इस मूवमेंट में कुछ भी नहीं हुआ है. बहुत कुछ हुआ है. If I start counting, there are like people from all over the world connected on the same issue everywhere. हमारी इंडिया की बात करें तो ऐसे महिलाएं जिनको फोन चलाना नहीं आता है, उन लोगों ने स्मार्टफोन चलाना सीखा. ऐसे लोग जिनको बात बोलने में हिचकिचाहट होती थी, they got a voice. They came out to speak about justice, to speak about this is not right. Somebody needs to stand up. Everybody is impacted some ways through this movement, I will say. Things are not the same since 14 June 2020, anywhere in India or with Indians abroad. If we talk about the film industry, we see what they are facing right now. Their movies are not working. They're trying to figure out what they can do for their living. They have departed so many ways to make it work, but it's not working at all. Absolutely. Many political figures, they have been out on corrupt cases that we knew previously that ministers लोग बहुत सारे काम में involved है, लेकिन ये सामने कभी नहीं आता था. But today we can speak freely, openly, like these people are involved in these cases and they're facing charges. लोगों में इतना hesitation आज नहीं है जितना 3 साल पहले था. We got a voice to speak about our opinion. What do we think is right? सुशांत के बारे में जितना भी बोले उतना कम है. We wouldn't know what happened with him if we didn't see those small videotapes people posted anonymously. Lekin, if we look at those videos, one person can be mistaken, but not many, like many national and internationally. Like many people, they see and they say, this is not a suicide, this is a murder. And we all know this is a murder. I understand that the movement has gone down, like cooled down a little bit. But any movement without consistent work is not going to bear any fruit. Like, this is not a normal case, not a normal case. Many people, many countries, many ministries are involved, like the film industry, the underworld, human trafficking, all of this involved with just one case. So it's not just easy for CBI to come forward and say, this is a murder case and this and this and these people are involved. No, Correct. Not at all. Correct. I believe the family knows many things that they are not coming in the public to tell us.
They have a reason. And I also believe that we are nobody to question their silence. We are nobody to judge them for what they're doing, what they're not doing to support Sushant in this journey. They are probably doing a lot behind the scene that we don't know, and they don't want the public to know every single detail. And they have the reason behind that. Now, yes, this movement itna din chala hai because of public. That family alone cannot do anything if they don't have this huge support of public. That's right. So all and all to say that to keep this movement going, we know what happened with Sushant was unfortunate. We lost a man with many, many, many talent. We have kids, they would have looked up to him for anything they want to do in life. He was such a figure. But to keep this movement going is very important for everybody to find maybe 10 minutes, 5 minutes a day to devote, maybe post, maybe do a 10-minute campaign. I know women now are very busy. Everything has opened up, daily routine like suppress us, like, oh, I don't have time. But we are very passionate in this movement, and that's why it's running this long. And you're passionate about something, you will find time for your passion. ऐसे नहीं बोलना है कि कोविड में हम लोगों के पास टाइम था, बाहर नहीं निकल रहे थे, घर में थे तो टाइम मिल रहा था फोन में बैठ। अभी भी हम वो कर सकते हैं। You go on a walk, sit quietly on a park, do a 10-minute video, do a 10-minute campaign, tweet for a minute. There are so many things we can do virtually, so many things. हम लोगों को रैली करने की जरूरत नहीं है कि मैदान में खड़े होने की जरूरत नहीं है. Very little few things every day is going to build up. And I will tell you, what she is saying, it makes sense. The reason for that is that agar hypothetically government is not working, CBI is not working, ED is not working, NCB is not working, I'm saying family is also not working. But if you start working, if you start raising voice, everyone will work. Why? Because the family also needs your support. Maybe family is thinking, what if we stand and we get isolated completely? Then what do we do? So the strength that you were giving to them, that resulted into the case that they filed before Patna police. Had you not been standing, maybe they would not have had the courage. Because agar if this is a murder, then it is not a handiwork of a common person. ये किसी आम आदमी का काम नहीं है. ये कोई बहुत जबरदस्त शातिर दिमाग है, कोई एक गैंग है जिसको सुशांत से इतनी परेशानी थी. कोई तो कुछ तो है ना, या तो इट्स ए पार्ट ऑफ स्कैम और इट इज पार्ट ऑफ सम अंडरवर्ल्ड डीलिंग या ड्रग डीलिंग. सम गैंग इज सर्टेनली इन्वॉल्व. कोई ना कोई तो ऐसा ग्रुप है जिसको सुशांत से बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी. तो ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट में जाकर खड़े होकर बात करना इज नॉट एन इजी जॉब. सो फैमिली अगर कोशिश भी करेगी तो उनको पता है कि कौन से लोग बैकग्राउंड में हो सकते हैं. अगर किसी को पता चल जाए कि ये लोग बैकग्राउंड में हो सकते हैं, अगर हम बोले कल हमें भी प्रॉब्लम होगी, तो हम 3 बार 4 बार सोचेंगे. Same goes with the family. But when you stand, there is a shield that they get, and then they use that shield to say what they want to say. अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि because they are completely isolated, अभी वो अगर उनको पुश करेंगे, maybe if they like we are saying, that is one point of view. This is second point of view. कि अगर फैमिली को हमने पुश किया तो maybe family is thinking we are exposed, our security cannot be guaranteed. इस देश में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें कौन बचाएगा? Rinku has something to add. Once again, just stay on, Susmita, 1 minute. Rinku has something to add to what I have discussed. Yes, Rinku, boliye. Sir, sorry, I was disconnected because of some reason. Sir, जो चीज आप कह रहे हैं ना उनकी फैमिली के बारे में, actually, I happened to see her interview that was on air. So that time she was telling that we have whatever information we got and we keep getting from any source, we just keep updating the CBI because they know because they also know that which platform they should go and tell.
So it's not that they are not doing their bit. They are putting every effort, and they are giving it to the right person who will make a change, whose step, like we all know that what has happened, and whatever has happened, CBI is the one who is going to deal with that. So they are directly going to that. They are not coming in public, and they are not giving statement, or they are not releasing any video for people. Rinku, I will tell you. I've covered CBI for about 7-8 years, right? मुझे भी मालूम है कि सीबीआई कैसे काम करती है. ये ऐसा नहीं होता है कि 1.5 साल तक सीबीआई किसी केस में चुप हो जाती है और आप अंदाजा लगाए सडनली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल बाद आएगी सीबीआई और अचानक जादू कर देगी. वो तभी होता है जब शीना बोरा केस जैसे केस में कोई विटनेस खड़ा हो जाता है. इस केस में प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अभी December 26 को एक विटनेस खड़ा हुआ है और उसने कहा है कि सुशांत के बॉडी पे इंजरी थी, सुशांत का स्ट्रैंगुलेशन मार्क था, वो हैंगिंग मार्क नहीं था. इसके बावजूद भी इस केस में कुछ नहीं हो रहा है. ये दिस इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग. यस, गो अहेड. सर, here we are fighting for Sushant, and we all know the fact. Now we are fighting with the system for the justice. We all know that what is the truth. The truth has to be said by the right people, and we are fighting for that only. Sir, everything has changed, but the system has not changed, and we people want a change in the system. हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी, और लड़ाइयों का आखिर अंत यही हमने देखा कि वो जो फाइनल अथॉरिटी है वो सिस्टम ही चेंज करने जा रहे हैं. वो सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी आती जाती है, लेकिन जो सिस्टम है उसमें चेंज लाने की बहुत जरूरत है. नहीं चेंज हो रहा है. And we have fight for that. Payal wants to say something. One second, Neena ma'am. 1 second, Rinku. Payal wants to say something. मधु, आपको आवाज आ रही है? सर, मधु, हम लोग, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड, पायल 1 मिनट. मधु, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज सर मेरा आ रही है. इसके बाद पायल के बाद मधु आपको बोलना है. सर, मेरा बैटरी रन आउट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से कंक्लूड. हाँ सर, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक बात है कि हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन लीगल जस्टिस तो सीबीआई को ही लाना है. हम लोग तो लीगल जस्टिस के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं. और जो विटनेस की बात आप कर रहे हैं, तो यही में हम लोगों का क्वेश्चन है कि क्या सीबीआई उनको लेकर क्या क्वेश्चनिंग किए हैं. तो अगर सीबीआई, आप जैसे बोले हैं कि अचानक से सीबीआई कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक उसी तरह सीबीआई इसको अचानक से आकर सुसाइड नहीं बोलेंगे. ये बात सीबीआई को भी पता है, क्योंकि अगर वो लोग सुसाइड बोलेंगे तो इनके पीछे भी उनको रीजन देना पड़ेगा कि वो क्यों सुसाइड बोल रहे हैं. क्योंकि हम लोगों के पास 100 से ज्यादा रीजन है इसको मर्डर प्रूफ करने के लिए, लेकिन सीबीआई को भी ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है. और ये जो पब्लिक की बात बोल रहे हैं ना, जो मैनी मैम बोल के गई है, मैं भी उससे एग्री करती हूँ कि एक बार भी अगर सीबीआई आकर ये भी अंदाजा भी लगाया कि बोलने का कि ये मर्डर नहीं है, सुसाइड है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा. ये सीबीआई को भी पता है, मैं इसका गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं शायद खुद ही लीड करूँ, शायद मैं खुद ही रास्ते पे आ जाऊं, क्योंकि 3 साल से लगातार डिजिटली, और मैं रास्ते पे भी जाकर प्रोटेस्ट की हूँ ऐसे बहुत जगह पर. तो मैं ऐसे नहीं हो सकता है कि पब्लिक चुप है. पब्लिक सिर्फ शांत है इसलिए क्योंकि सीबीआई जैसे एक बड़ी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है. पब्लिक इस सोच पे है कि शायद हमारे बोलने से अगर कुछ हो, क्योंकि पब्लिक ही सीबीआई को लाए हैं इस केस में, पब्लिक के प्रेशर की वजह से ही सीबीआई आए हैं. तो मेरा ये मानना है कि सीबीआई कुछ हिंट तो दे कि ये मर्डर, सुसाइड 302, क्योंकि ये एक एबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस होकर ही अभी भी हम लोगों के सामने है. ये अभी भी मर्डर केस में गई ही नहीं है. Exactly my point exactly is this ना पायल की, अगर मान लीजिए अभी भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, जिसको बेसिकली सुसाइड को ही कोई अबेट कर रहा है, तो सुसाइड ओनली. तो अगर सुसाइड का है तो 302 कहीं पर भी पेपर पे नजर आएगा, या अगले 5 साल तक हम इंतजार करते रहेंगे ये होगा तो 302 होगा, और उस चक्कर में हम निकल गए और फिर वही जिया खान केस बन जाएगा. सर, सीबीआई तो खुद लगा सकते हैं ना 302, उनके पास प्रूफ आए तो. उनके पास प्रूफ नहीं है क्या? वही तो. जिया खान केस में क्या हुआ? एक मिनट, जिया खान केस में क्या हुआ? लगा दिया क्या? नहीं लगाया. ये आप कैसे सोच रहे हो कि लगा देगी सीबीआई खुद से? तो कौन? जिया खान केस में लेट्स कंपेयर द टू केसेस. जिया खान केस में क्या हुआ? जिया खान केस में 2013 में जिया की डेथ हुई, ठीक.
उन्होंने कहा सुसाइड है, मदर ने रिएक्ट किया, वो सोशल रिएक्शन था, बट 1 महीने बाद ऑफिशियली फैमिली ने जाके चैलेंज किया सुसाइड थ्योरी को, और उसको लगे हैं कितने साल, 10 साल लगे हैं उस केस को लड़ने में, और 10 साल बाद लोअर कोर्ट ने कंक्लूड किया कि ये सुसाइड ही है, ये मर्डर नहीं है। अब शी हैज टू गो टू हाई कोर्ट एंड चैलेंज द लोअर कोर्ट ऑर्डर। 10 साल में उनको ये ऑर्डर तो मिल गया एक जगह से कि ये मर्डर नहीं है, सुसाइड है, बट दैट 10 years शी फॉट, राइट? यहाँ पर क्या हुआ, 3 साल निकल गया बगैर किसी लड़ाई के, 3 साल बगैर लड़ाई के निकल गया। 2 साल में एक और नया केस अगर आ गया, हाइपोथेटिकल थिंक ऑफ इट, कोई ऐसा केस आ गया जिसमें लोगों का इमोशन और ज्यादा जुड़ा होगा, तो इस केस को क्या लगता है आपको कि याद रखेंगे लोग? पीपल्स मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। एक बड़ा पेड़ गिरता है, छोटा पेड़ भूल जाते हैं लोग। लीगली इसको फास्ट ट्रैक में कौन ला सकते हैं? We all are fighting for that, and we are still very much connected to the case. आज भी मैंने 3 साल बीत गए, मैंने एक भी टीवी सीरियल नहीं देखा, एक भी फिल्म नहीं देखी, वैसे भी मैं बहुत कम देखा करती थी, and now I have made a point. बॉलीवुड पोएटिक जस्टिस का हिस्सा है वो, no I'm telling how much we are determined. I am telling about the determination. People are not going to take this case very easily, and this message has to be given to the government time and again, so that they should also realize that this is a people's movement, and people's movement they can't ignore. This government is बीजेपी से जुड़े लोग बीजेपी के सरकार को बताते हैं कि ऐसा करिए, बताते तो होंगे सर, उनके पास बड़े मुद्दे और हैं, वो उन मुद्दों पे वो लग जाते होंगे, उनको लगता है ये मुद्दा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या बताया जाए सर, फिर आप बोल देते हैं ज्यादा ना बोला जाए, तो हम क्या बोले? देश के नवनिहाल तो जाकर के वहां पर अमेरिका में जाकर के नाक कटा के आ जाते हैं, तो उनको वो मुद्दे ज्यादा जरूरी लगते हैं, ये वाले मुद्दे कम लगते हैं। सर बंगाल में तो सारे मंत्री तो अंदर चले गए हैं, क्योंकि उन लोगों को जाना था, कहीं पे केस पे, कहीं पे किस केस पे। हम तो बोलने में भी शर्म आता है कि हम बंगाल में रहते हैं, तो केस होता नहीं है ऐसा नहीं है, होता है। अगर जिताया किसने था? अगर वो करना चाहे तो, अगर सीबीआई इसको क्या बोले सर, मतलब अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आप ही तो लाई थी दीदी को। हम थोड़ी लाए हैं, हम तो वोट ही नहीं देते हैं बंगाल में, मेरा तो वोटर आईडी कार्ड झारखंड का है। ये और भी गलत बात है, ये और भी गलत बात है। हर वोट इज इन झारखंड मेरा है। अच्छा। कोई वोट हम नहीं देते हैं, लेकिन रहना पड़ रहा है। जो वोट नहीं किया बंगाल में, वो बंगाल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकता, इस स्टोरी पे रहिए। लेकिन सर मैं सर ये बोलना चाहती हूँ कि अगर सीबीआई को ये फास्ट ट्रैक पे लाना है तो प्लीज सर कुछ भी बोले कि 302 तो हम लोग अगर आवाज उठाएं, तो मैं एंड ऑफ द डे यही बोलूंगी कि फैमिली को भी लाना पड़ेगा लीगली एज अ पेपर वर्क। पता है उन लोगों को बहुत सारे चीज उनको पता है, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 302 ये कब होगा। दैट्स द मेन क्वेश्चन सर। 302 होने के लिए पहले वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, जिसको लेकर क्वेश्चन उठाए, वो तो फैमिली को पता है ना, तो वो कि कैसे रात में पोस्टमार्टम हुआ ये भी नहीं पता है। तो वही तो वो लोग सिर्फ बोलेंगे पोस्टमार्टम रात में किया गया, क्या ये फैमिली नहीं बता सकती है? एग्जैक्टली मैंने तो यही बोला। एग्जैक्टली आपके ना रुद्रा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आई कैन सी अ ब्लैक स्क्रीन देयर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट यू। सर उन्होंने स्क्रीन में लिखा है कि वो हॉस्पिटल में, इसके लिए वो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट ही वांट्स टू जॉइन। बहुत देर से आपको देखा। ओके, तो मैं बस होप करूंगी कि अगले साल तक, 3 साल तो हम लोग बैठे हुए हैं आपके प्लेटफॉर्म पे के तो अगले नेक्स्ट ईयर तक हमें हमारे सुशांत को जस्टिस मिल जाए लीगली, नॉट पोलिटिकली। पोलिटिक जस्टिस तो मिल रहा है। सर वन थिंग आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो अपना बीच में इतना लंबा गैप ना किया करें, आप कंटिन्यूअसली प्लेटफॉर्म पे अपने कंटिन्यू करिए, चाहे वो 5 ही मिनट का हो, लेकिन वी वांट टू सी आवर पीपल हियर एंड एटलीस्ट वी वांट टू सी यू। आपका एक भी अगर हम सेशन मिस करते हैं, वी मिस इट बैडली, स्पेशली मी।
I appreciate that. I appreciate. थैंक यू। या थैंक यू सो मच। मैं पहली बार सभी को प्रणाम, और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे कि कुछ लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा मुझे पहले, और बहुत से लोग जानते होंगे, तो मैं ये पहली बात बता दूं कि इसके पहले ऐसी बात नहीं, फैमिली है के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ के उनको लिखित में इस चीज के संज्ञान इस चीज के लिए बोला हुआ था, और सीबीआई को भी कई बार जो है ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं और पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी हैं। उसके पहले मैं एक सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? Am I audible? हाँ, थैंक यू। तो सीबीआई को भी अप्रोच की है, और क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के मतलब उसके लिए कि अपडेट दे, या फिर उनके पास भी कुछ, हाँ, कुछ वो क्या कहते हैं बताएं, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बट हुआ ये कि उनके तरफ से रेडियो साइलेंस रहा और उतना कॉपरेशन नहीं रहा। लेट मी टर्न ऑफ द कैमरा। या तो उसके बाद इशू क्या हुई कि फिर मैंने somehow I got connected with one of the doctor who performed the postmortem of Sushant sir. I talked to him personally, और उन्होंने कुछ important documents भी provide करवाए, और जो कि काफी है इस चीज के लिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो कि ये भी चीज बताती है कि भैया ये सुसाइड तो नहीं है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि जो आईओ है वो चेंज हुए हैं रिसेंटली, जो नए आईओ हैं उनको भी ऑफिशियली चीजें दिया। मतलब मैंने जो प्राइवेट हमारी चैटर्स में लिंक्स भी दी हुई है। हुआ ये कि इसके पहले भी बहुत सारे एविडेंसेस और बहुत सारी चीजें बाकी माध्यमों से सीबीआई तक, जो पुराने आईओ थे और करंट आईओ हैं, दोनों तक पहुंचाई गई, बट कोई भी उनके तरफ से कुछ भी वैसा एक पॉजिटिव। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज हुआ अच्छा, इन सारे नेगेटिव चीजों में, तो आई नो थोड़ा डिस्करेजिंग लगेगा सुन के कि अरे भैया ये सीबीआई तो फिर कुछ भी नहीं कर रही है। तो उसमें एक पॉजिटिव चीज ये हुआ कि जो आदरणीय हमारे राष्ट्रपति हैं अभी, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको जब चीजें एक रिपोर्ट बना के पूरी मैंने एनेक्सचर के फॉर्म में पूरी भेजी कि कैसे इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद भी एक रेडियो साइलेंस है, तो मुझे रिसेंटली राष्ट्रपति जी से ऑफिशियली लेटर प्राप्त हुआ। उन्होंने उस चीज का संज्ञान लिया, और होम मिनिस्ट्री को उसका भी लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इसमें प्राइवेट में, और ऑफिशियली एक्नॉलेज करते हुए बोला होम मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर संज्ञान ली जाए, इसके ऊपर चीजें की जाए। तो ये चीजें हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आई टोटली एग्री, ग्राउंड पे उतर के काम करना होगा, और आई टोटली एग्री कि पोएटिक जस्टिस वो अलग एस्पेक्ट है। बट हाँ, एक चीज तो है कि हम जितने भी एविडेंसेस, जितने भी प्रूफ सीबीआई तक जैसे जैसे पहुंचाते रहेंगे, और उन माध्यम से जिससे कि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, तो कल को अगर हम वर्स्ट केस के लिए रेडी रहते कि कल को क्या होगा वर्स्ट केस कि 306 के साथ ये चार्जशीट लाएंगे, तो हम इनको कोर्ट ऑफ लॉ में घसीट सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि कुछ लोग ये बात आप जानते हैं कि विद गॉड ग्रेस आई एम कनेक्टेड विद द फैमिली अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश कर रही है, बट हर जगह से एक तरीके से आप समझ लो गैग लग गया है। आप खुद मीडिया से जुड़े हो सर, तो आपको पता है कि जब पावर प्ले में आती है तो कैसे एक रेडियो साइलेंस हो जाता है, गैग लग जाती है। तो इतनी सी बात कहनी थी। तो फैमिली आउट ऑफ द वे जाके चीजें कर रही है, ये तो मैं आपको एंश्योर कर सकता हूँ। ओके 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 रुद्र, दैट्स अ गुड थिंग। एटलीस्ट प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन आ रहा है और फैमिलीज परसुइंग इट देयर ओन वे। ठीक है, उनका अपना एक लीगल स्ट्रेटजी होगा ऑब्वियसली। उनसे ज्यादा कोई अफेक्टेड है नहीं, ये बात तो सही है ना। अल्टीमेटली उन्होंने अपना भाई खोया, तो उनसे ज्यादा अफेक्टेड तो कोई होगा नहीं। दैट पार्ट नो वन इज चैलेंजिंग। द ओनली थिंग इज कि लाइक they are worried, others are also worried, people like me who have raised the question from day one. I also want that there should be at least a conclusion, we should know what happened. तो उस हिसाब से सब लोग थोड़ा सा एंक्शियस तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई एम श्योर कि फैमिली से ज्यादा तो कोई और वरी करेगा भी नहीं और ना कोई सोचेगा, ये तो बिल्कुल सही है। बिकॉज थिंग्स आर नॉट मूविंग, सो मेनी थिंग्स डू कम टू एनीवन्स माइंड। और क्योंकि लीगली ये बात फैक्ट है कि लीगली जितना फैमिली परस्यू कर सकती है उतना ना रुद्रा कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और जो इस मूवमेंट से जुड़ा होगा, जो आप लोगों का मूवमेंट है उससे कोई और जुड़ा हुआ भी नहीं कर सकता। अल्टीमेटली फैमिली ही लीगली उसको ले सकती है। अब अगर रुद्र की माने तो ऑब्वियसली फैमिली इज टेकिंग इट सीरियसली। अब 3 साल में जो कुछ भी हुआ है, वी जस्ट टेक इट एज एन एबरेशन फ्रॉम सीबीआई। होपफुली अगला 1 साल में कुछ हो जाए और हम वी सी अ लाइट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे। फैक्ट ये है कि लोग अभी भी कन्विंस नहीं है कि सुशांत इज a case of suicide. Yes, Sarvani, please go ahead. पहले मधु को बोले थे, मधु बहुत देर से वेट कर रही। रुद्रा आप लाइन पे हो? रुद्रा आप लाइन पे हो? हाँ, कुछ भी ऐड करना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं सुनना चाहूंगा, तो मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ सर। आप
लाइन पे रहो, आप लाइन पे ही रहो, मैंने रखा हुआ है, ठीक है। जब भी आपको कैमरा ऑन करना हो आप कर सकते हो, ठीक है ना? या यस मधु प्लीज गो अहेड, बोलिए। थोड़ा यहाँ पे छुप के मैं थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर नो प्रॉब्लम रुद्र, जस्ट स्टे ऑन। जब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा मैं ऑन स्क्रीन कर दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट नो कब आप बोलना चाहते हो। मैं भी म्यूट पे डाल रहा हूँ, ठीक है। यस मधु प्लीज गो अहेड। मधु का म्यूट पे है, यस 1 सेकंड। मधु अब बोलिए आप। सर देखिए, आज के दिन मुझे सीधे है ना सिर्फ इतना कहना है कि जो अभी जितना डिस्कशन चल रहा है ना कि क्योंकि पहले हम फ्री थे तो हम ऐसा कर रहे थे, ऐसे कुछ जस्टिस मिलता है क्या? जब अगर हम ही ऐसा कह रहे हैं कि हम फ्री थे इसलिए टाइम पास कर रहे थे, तो गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट तो और भी 2 कदम आगे हमसे सोचती है। वो तो और ये सोच के चलेगी कि भैया ये तो फ्री थे इसलिए ऐसा कर रहे थे, अब ये सो गए हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है ना सर कि हमें सिर्फ 2 बात बोलनी ही तो है, एक ट्वीट ही तो करना होता है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं किसी चीज के लिए तो हम कर क्या सकते हैं? और ये बात बिल्कुल सही है सर। अभी देखिए इलेक्शंस बहुत पास में है, इलेक्शन बहुत पास में है और ये राइट टाइम है बैंग ऑन करने का, पब्लिक को प्रेशर अपनी तरफ से इतना फुल ऑन देने का कि गवर्नमेंट को ये एक जो इलेक्शन का जो इश्यू होते हैं ना उनके, ये टॉप मोस्ट पे प्रायोरिटी पे पहुंच जाए। उनको ये प्रेशर और कोई नहीं दे सकता है, वो पब्लिक ही दे सकती है। और ये गवर्नमेंट सर वोट के लिए करेगी और होगा, लेकिन सर देखिए जस्टिस तो मिलेगा, मिल जाएगा, वो तो मिलेगा। और इंडिया में इतना इजीली इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, लेकिन हम जो पब्लिक हैं हम अपनी तरफ से तो जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं ना। हमें तो बस सिर्फ हमें इस इश्यू को उठा के रखना है। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे सच में दबा हुआ है। हाँ, कभी कभार मैं सुशांत की बहन के उनमें देखती हूँ तो उनमें लोग जगह में दिखते हैं बट और कहीं नहीं दिख रहे। लेकिन आप उनके पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाकर के सिर्फ मैसेज करने से नहीं होगा ना, आप पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाके करेंगे नहीं, आपको पूरी तरफ सोशल मीडिया में पूरा छाए रहना होगा सुशांत की पिक्चर के साथ और अपनी वॉइस के साथ। और सर ये बहुत जरूरी है, ये इलेक्शन आ रहा है, अगर इस टाइम अगर चूक गए ना, पब्लिक अगर चूक गई तो फिर एक लंबा समय फिर से वेट करना पड़ेगा। Okay, just Madhu, stay on. Yes, Margaret, 1 second. Let me. क्या रुद्र आप कुछ बोल रहे हो? 1 second. जी सर, मैं बिल्कुल मेघा बोलिए। अच्छा मेघा बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, ओके। Hi everyone. It's been a long time. Hope everyone is good. Sir, मैंने अभी ज्वाइन किया है, but I just joined. I was out for some work, so I just joined it. I need to hear it first before saying anything, तो आप उनको बोल सकते हो। Yeah. Okay. रुद्र आप बोलो, कैमरा ऑन करके आप बोलो। जी ओके। सो द थिंग इज दैट कुछ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि देखिए, एक बात आप मान लीजिए सभी कि पेन की जो ताकत है ना इसमें, वही अल्टीमेटली जिताएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अंडरवर्ल्ड माफिया, द गून्स, बट हम इसलिए ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं इन मेनी केसेस। एट द सेम टाइम जो पेन की ताकत होती है दैट वो हमेशा ही ज़्यादा होती है। तो हैविंग सेड दैट, जो लोग लेटर लिख सकते हैं वो लेटर लिखे, जो मेल कर सकते हैं मेल लिखे। भाई इंटरनेट तो है ही, हम यूट्यूब में है अभी देख रहे हैं, तो मेल लिखें, ग्रीवांसेस फाइल करें। अभी जो नए सीबीआई डायरेक्टर हैं, हमेशा देखिए गीता में भी यही लिखा गया है कि कर्म करते रहना है, फल हमारे हाथों में तो होता नहीं है। तो एटलीस्ट हमको ये तो ना रहे कि हमने अपने तरफ से कोई कसर बाकी रख दी थी। तो जो नए सीबीआई डायरेक्टर है वो थोड़े टेक्नोक्रेट हैं, वो टेक्नोलॉजी के वो हैं। तो ये जितने भी डिजिटल एविडेंसेस थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी अगर एविडेंसेस भी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो कम से कम गुहार है, तो वो है। आप अगर मेल पे हो उन्हें, लेटर लिखते हो तो वेल एंड गुड, वो करते हो, ये सारी चीज़ें हमें रिपीटेडली करनी है। ये हमारी एग्जिस्टेंस को, जैसे हम सोशल मीडिया में, सॉरी मैं मैम का नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, तो सोशल मीडिया में तो छाके रखना है, बट उनके दफ्तरों में जब हमारी कागजें जाएंगी, हमारे लेटर्स जाएंगे, हमारी ईमेल्स जाएंगी, वहां पे भी दिखेगा कि कौन है भाई, कि के बार बार आए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जिद ही है जो जस्टिस दिलवाएगा। क्योंकि आज विकास सर ने कितनी बड़ी बात बोली, जो कि आप लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था, कि इसको एक स्लो डेथ देना चाहते हैं। स्लो डेथ मतलब मेमोरी से हटा देना। तो जब हम इतने जिद्दी हैं, स्टबर्न है कि मेमोरी से हटने नहीं देंगे, तो वो कैसे स्लो डेथ दे पाएंगे? अल्टीमेटली वो हार जाएंगे। और वैसे भी हमारे पूर्वजों को देख लो, आई एम सॉरी मैं बहुत ही गंदा पैरेलल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बट एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, क्योंकि मेरे नाना जी भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, कि हम लोग ऑलरेडी हमारे वो रक्त में है लड़ाई करके चीजों को वो करना, अचीव करना। तो जब
इतनी सिचुएशन ड्रास्टिक थी पास्ट में, तो भी हम लड़के आज यूट्यूब में लाइव पे बात कर पा रहे, कहने को हमारे सामने इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी ये सब कुछ है। तो वैसे ही हम ऐसे ही फाइट करते रहेंगे एकदम रेलेंटलेसली, तो जस्टिस भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर इंटेंट है तो ये अंडरवर्ल्ड माफिया कह लो, कबाल कह लो, दे आर नथिंग। तो बस इतनी एक पॉइंट रुद्र इसमें मैं ऐड करूंगा। मिस्टर विकास सिंह जो भी बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, that is he is a lawyer from the family side. I don't know whether he is the lawyer now or not, but he had represented the family earlier, so he has said whatever he has said. But fact ये है कि अगर सीबीआई को इसको स्लो डेथ देना होता तो मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी या बिहार गवर्नमेंट सीबीआई को क्यों लाती? वो तो बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस ने ही स्लो डेथ दे दिया था, है ना? सो जब सीबीआई को लाया गया होगा तो कुछ तो सोच के लाए होंगे। ऑब्वियसली उनको दिखा होगा इतनी भीड़ है, 30 करोड़ लोग हैं, इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। तो पॉलिटिकल माइलेज को दिमाग में रख के गवर्नमेंट बीजेपी इतनी एक्टिव हो गई, तो वो पॉलिटिकल माइलेज क्या खत्म हो गया है? नहीं ना, अगले साल इलेक्शन है और लगातार इलेक्शन बिहार में भी होंगे। तो पॉलिटिकल माइलेज तो एक ऐसी चीज है जो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप क्यों नहीं पॉलिटिकल माइलेज का फायदा उठा सकते? उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। तो अगर आप वॉइस रेज करोगे तो वो आपके पास आएंगे, और अगर आप चुप बैठ जाओगे तो वो अपने काम पे चले जाएंगे। तो आप हल्ला करोगे तभी वो आपको वोट बैंक समझेंगे, तब आपकी बात सुनेंगे, तब आपके लिए चीजें करेंगे। आपका आंसर आप ही के क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि अगर आपको पॉलिटिकल रीजन से इस केस को बीजेपी ने उठाया, तो पॉलिटिकल रीजन से ही बीजेपी इस केस को सुनेगी भी, क्योंकि उनको इलेक्शन अगर जीतना है। अब आप सोचिए कि आपको उसका फायदा उठाना है या ये सोचते रहना इस केस को, दुनिया में जितने केस होते हैं देश में सब पॉलिटिकली डिसाइड हो जाते हैं, पॉलिटिकली डिसाइड हो जाते हैं ये सोच के केस को बंद करना है या उसका एडवांटेज लेना है। एडवांटेज ये है कि अगले साल इलेक्शन है, उसके बाद अगले साल बिहार में इलेक्शन है। अगर आपकी ताकत है तो दोनों जगह इन्फ्लुएंस कर लीजिए और अपना काम निकाल लीजिए और इस केस का कंक्लूजन कराइए। नहीं तो अपने घर में बैठिए, रिलैक्स कीजिए, कंक्लूजन का वेट कीजिए। जिस दिन कंक्लूजन हो जाएगा उसके बाद 50% जा चुके होंगे और 50% चले जाएंगे। जो बचेंगे मे बी सिंसियर पीपल, वो जितना कर सकते हैं करेंगे। एंड ऑफ द डे उनकी भी एक कैपेसिटी है। सो डोंट लेट दैट हैपन। एक्सप्लॉइट द पॉलिटिकल कंपल्शन which forced the CBI to come and get a justice in this case. That's what I would put it like. Yes. with all due respect again, मैं बहुत सारी चीजों से, क्योंकि ग्राउंड में चीजें मैं कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, और आपको बहुत सारी चीजों में फर्स्ट हैंड बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। नहीं, अब मैं पॉलिटिकली आप कितना भी कुछ कर लो, आई पर्सनली हैव जीरो एक्सपेक्टेशन। आई माइट बी साउंडिंग नेगेटिव बट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये लोग ऐसे इतने पावरफुल लॉबी है सर कि ऑफ कोर्स मैं जैसा भी कुछ देर पहले खुद ही गीता के बारे में बता रहा था कि एफर्ट डाला है, सब कुछ करना है, बट अगर ये अपने पे आ गए तो ये हम सबको पूरे सिस्टम के द्वारा एक गैग लगा के चुप करवा सकते हैं, एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये भी एक हार्श रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट का देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुंबई की ही पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी को मैं कटघरे में ला रहा हूँ, तो उन्होंने ही ऐसा वेल ऑर्गेनाइज चीजें करवाई कि प्रियंका दी, जो कि 1 साल से कम ट्विटर पे आके आवाज उठा रही थी, जो भी कुछ करी थी, इतना मेंटली हैरेस और टॉर्चर किया, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स थे जो भी कुछ थे, कि मतलब उनको अल्टीमेटली ट्विटर एक तरीके से छोड़ के जाना पड़ा फ्रस्ट्रेट होके। और एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक कारण है कि चार्जशीट फाइल नहीं हो रही और ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें ऐसा दिखाना होगा कि वी आर मोर पावरफुल देन दिस पॉलिटिकल लॉबी, जो कि सुनने में इम्प्रैक्टिकल लगता है, बट अगर हम रियल मायने में जस्टिस चाहते हैं कि जितने भी लोग मर्डर किए उनका नाम सामने आए, तो वी हैव टू शो सो मच यूनिटी अमॉन्गस्ट ईच अदर, और इतना हमें वेल इन्फॉर्म चीजें उन तक पहुंचानी है कि उनको पता रहे कि यहाँ पे बॉस ये हमारी दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक चीज इंश्योर कर दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सारे मिले हुए हैं, सारे आपस में मिले हुए हैं। कोई ऐसा मंशा नहीं रखता कि सुशांत सर को जस्टिस मिले। दिस माइट साउंड नेगेटिव बट दिस इज द रियलिटी। Okay. Yes, Sarvani, please go ahead. Sir, I'm really happy रुद्र जी के इनके कन्वर्सेशन के बाद ये सुन के कि there is something happening at the backstage which we are not aware of. तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड somehow मोटिवेशन और बढ़ रहा है कि हम लोग कुछ करें। आई वुड डेफिनेटली आस्क रुद्र जी की कौन से जगह पे हम लोग और आगे आके, जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट ईमेल्स एंड लेटर्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो अगर वो कहीं शेयर कर सके कि हम लोग किस जगह पे जाके हम लोग अपने बारे में बता सकें और इस इश्यू को वापस से रेज कर सकें, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल द
fans to raise their voice again with full force. तो I would definitely request him कि वो अगर कहीं कुछ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर so that we all can do our part as well. अब तक हम लोग हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, हर तरीके से हम लोगों ने इस फाइट को किया है. लाइक पोएटिक जस्टिस के बारे में अगर बात करें तो यस, ठीक है, मैं खुद मानती हूँ आई एम गिल्टी कि मैं अब उतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हूँ इसको लेके, because obviously I'm having my own personal issues, but still अंदर like in a silent way I'm supporting. उस दिन जो मैंने मूवीज छोड़ी हैं, आज तक मैंने एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं देखा है. Those who know me as Sarvani, they know that she is the boycott Bollywood person. So मेरे पास तो ये लेके भी नहीं आते हैं डिस्कशन कि तुमने ये वाली मूवी देखी है क्या, because they are 100% sure कि I'm not watching it. And मेरे जो भी फैमिली हैं, they are aware कि they should not watch that because I won't like it. कि उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी को. तो my children, though they are young, they know what they have to follow, whom they have to follow, take as their hero, not these Bollywood actors जिसको मैं भी बचपन से बहुत ही सारे एक्टर्स को मैंने अपना हीरो माना था, which now I realize कि एक बहुत ही बचकानी हरकत थी. पूरे कैंपेन का सर्वनी, पूरे कैंपेन का अगर खामियाजा किसी ने That's Bollywood sir. तो वो बॉलीवुड है. ये स्टार थे, बिल्कुल सर. जैसे सुशांत हर चीज में ही यूज्ड टू से कि इंटरनेट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा औजार है जो जस्टिस दिला सकता है. उसने एक ऐसे ही रैंडम कन्वर्सेशन में सुशांत ने कहा था जिसको वी नेवर न्यू. उस समय तो हम लोग शायद सुशांत को उतना फॉलो भी नहीं करते थे जब वो अलाइव थे. डेफिनेटली आई वुड से अभी द वे उनके बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम रियली प्राउड जिस तरह से नासा उनके बर्थडे डेट को सुशांत डे की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अस फैंस टू से कि उनको इतना अच्छा एक रिकॉग्निशन मिल रहा है. एंड अगर वो उनके जीते जी मिलता तो वी वुड हैव बीन इवन मोर हैप्पी. एंड that is the reason the possibility of conspiracy is higher ना. अगर कोई एक ऐसा आदमी 8 साल इंडस्ट्री में रहेगा और 8 साल में इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि इजराइल उसको ब्रांड एम्बेसडर बना ले, नासा उसको बुला ले, और आप उसको बोलो कि प्रोफेसर है, इसका तो दिमाग ही खराब है, इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी सीरियस व्हिच वाज गोइंग ऑन. कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थी टू एलिमिनेट हिम फ्रॉम द सिस्टम सो दैट इफ एजुकेटेड पर्सन गेट्स एलिमिनेटेड देन द ऑर्डिनरी विल रूल. अगर बेटर लोग आ जाएंगे तो ऑर्डिनरी कैसे नेपोटिज्म एक छोटी सी चीज ऐड कर, हाँ एक छोटी सी चीज ऐड करना पड़ेगा. मैम ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा था तो इसका छोटा सा जवाब दे दूं, फिर मुझे रेस्ट ले जाना पड़ेगा. नहीं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. थैंक यू सो मच मैम, आपने ये पूछा कि एग्जैक्टली किनको लिखे और क्या चीज लिखे. तो बहुत ही सिंपल है. अभी 3 चीज पे नोडल पॉइंट्स हैं. एक हो गया सीबीआई, और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 लेवल पे आप काम कर सकते हो. सीबीआई को भी हम अननेसेसरी मतलब वो भी ओवर बोल्डेड ना हो जाए तो इसके लिए भी प्रोसेस बता देता हूं. तो एक तो हो गया सीबीआई में 2 लोग. एक, अगर आपके पास कुछ एविडेंस है, लेट्स से अगर एविडेंस नहीं है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहते हो कि जस्टिस की गुहार करें तो डायरेक्टर को लिखिए, क्योंकि डायरेक्टर चेंज हो गए हैं. तो उसके लिए आप सिंपली लेटर लिख सकते हैं. ठीक है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नाम है, आप गूगल में सर्च करोगे ना सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली तो वो आपको एड्रेस मिल जाएगा. तो मस्त डायरेक्टली आप डायरेक्टर को लिख सकते हैं और उनको गुहार कर सकते हैं. बट अगर आपके पास कोई एविडेंस है और जिसको लेकर आप श्योर हो कि हाँ ये केस के लिए सही हो सकता है मर्डर एंगल पे, तो अगर आप अच्छे से सीबीआई हेडक्वार्टर का जो नंबर है कंट्रोल रूम में उन पे बात करोगे, और ये दिल्ली AC 6 SIT ब्रांच में है अभी केस, तो उनको अगर आप बोलोगे कि आईओ से कनेक्ट करवा दें, तो ये मैं मानूंगा कि सीबीआई आईओ से कनेक्ट करवा रही है. ठीक है, आईओ की टीम से भी पूरी जो है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उनसे कनेक्ट करवा रही है. तो उनसे आप टेलीफोन में, और वो फिर आपको आगे गाइड करेंगे कि कैसे एविडेंसेस, चाहे पेन ड्राइव के माध्यम से हो, चाहे मेल के माध्यम से हो, चाहे राइटिंग में हो, तो दे विल गाइड यू द प्रोसेस. ये हो गया अगर एविडेंस शेयर करना है. अगर गुहार लगानी है तो डायरेक्टली डायरेक्टर को लिखना, दैट विल बी ग्रेट. दूसरा नोडल पॉइंट हो गया आपका एचएमओ के लिए आप डायरेक्टली उनको वही चीज है, लेटर लिख सकते हो. एचएमओ का भी एड्रेस आपको गूगल में बड़े प्यार से मिल जाएगा, और आप मेल भेज सकते हो उन्हें, बिल्कुल ठीक है. और ग्रीवांसेस मत करना, क्योंकि ग्रीवांसेस अलग कंटेक्स्ट में बनता है तो वो बहुत जल्दी डिसमिस हो जाता है. तो उसके साथ मेरा तो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है.
तो मतलब इन टर्म्स ऑफ कि बहुत जल्दी वो डिस्पोजल हो जाता है। तो लेटर लिखने से मुझे बहुत अच्छे इसके पहले रिवर्ट्स या अपडेट्स मिले हैं, और आपका क्या कहते हैं ईमेल भेजने से भी। दूसरा हो गया राष्ट्रपति जी, उनको तो लेटर लिखो, और क्या कहते हैं कहीं पे भी आप इंडिया में, तो उनका एड्रेस बड़े इजीली गूगल में अवेलेबल है, तो आप लेटर लिख सकते हो और मेल भी कर सकते हो। उसके लिए आप उनके चाहो तो फ़ोन नंबर माँग के उनको बोल सकते हो कि मेल आईडी दे दीजिए। तो ये 3 जगह पे आप करो, आपको एक मतलब उनके तरफ से पॉजिटिवली बात तो वो करते हैं, उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, तो ये चीज़ तो होती है। तो ये 3 चीज़ आप लोग करो, 10 लोग करेंगे, 20 लोग करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कंपेयर टू अगर 1-2 लोग करें। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, Rudra. Okay, thanks, Rudra. Keep coming. Whenever we are connecting, please do keep coming. You know, thanks. Nice talking to you. Thanks. Yes. Now next, Madhu, please go ahead. Madhu, बहुत देर से वेट कर रही है। सर, रुद्र ने जो अभी बोला ना कि आप अगर पीएमओ को लिखते हैं, राष्ट्रपति को लिखते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटा सा भी अगर उनके पास लेटर जाता है ना सर, वहां से रिवर्ट जरूर आता है। मेरी नीस ने सर अपनी कॉलोनी के कुछ इश्यूज को उठा के उसने लेटर लिखा था, उसको रिस्पॉन्ड तुरंत मिला था। और उसने क्यों लिखा था? क्योंकि उसे पता चला था कि उसके किसी जान पहचान ने प्राइम मिनिस्टर को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा था, तो उसके बदले में उसको रिवर्ट आया था कि मैं इस रीजन से नहीं पहुंच पा रहा। तो वो देख के उसने भी लिखा। तो रुद्र ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम उनको पर्सनली लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप पर्सनल एक तो आप लिखो, और एटलीस्ट इस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, इतना सारा कुछ करते हो, एटलीस्ट जो ग्रुप्स हैं, जिस ग्रुप में आप जुड़ चुके हो, उस ग्रुप में तो जुड़े रहो, वहां तो एक्टिव रहो। एक बटन ही तो दबाना होता है। अगर आप उतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर हम कर क्या पाएंगे? मेरा ये कहना है सर कि आप कैसे भी करके, जो रुद्र ने एक चीजें बताई उसके थ्रू, और उससे तो सबसे ज्यादा इजी है सर ये। और आपको ये भी पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं डिजिटल मीडिया पे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अगर हम इसके भी थ्रू अगर जुड़ते हैं ना, तो भी वो बात वहां तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सो रहा है। लेटर अगर लिखने का टाइम है तो आप लेटर लिखो, वरना एटलीस्ट जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए थे ना 3 साल पहले, और आज भी मुझे दिख रहा है कि सब जुड़े हुए हैं, तो एक्टिव दिखो। आप हर जगह, आपको जितना 2 मिनट का भी मौका मिल रहा है, आप आके जुड़ जाओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए जुड़ जाओ, कुछ लिख दो, कुछ ग्रुप में जुड़ो, कम से कम वीडियोस को लाइक और वीडियोस को देख ही लो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो। ये मेरा कहना है। और कुछ नहीं करूंगा। वीडियो हमारे जैसा वीडियोस बन रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, उसको पहुंचाओ, और भी लोग सुनेंगे तो शायद उनको भी पता चलेगा। दे विल ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग। एंड द ग्रुप जो हम लोग के वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं और सीधा डिक्लाइन कर देता है, रिक्वेस्ट देम, यू हैव टू कंसिडर द कंटेंट एंड डोंट गो बाय द पर्सन। हो सकता है मेरी शक्ल आपको पसंद ना आ रही हो, लेकिन कंटेंट से आपको कोई नफरत नहीं है। प्लीज डू अप्रूव द वीडियोस दैट आई रिकमेंड ऑन वेरियस ग्रुप्स। पहले वो कर रहे थे, अब सीधा स्ट्रेट अवे डिक्लाइन कर देते हैं, बिकॉज शायद उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है या मेरा नाम पसंद नहीं है। व्हाटएवर, आई एम अ प्योर जर्नलिस्ट। इवन इफ यू शेयर, इट विल नॉट harm anybody, because end of the day I'll just do a job as a journalist and I am not a YouTuber who has any other intention. Yes, please. Yes, Madhu, go ahead. Yes sir, बस मेरा ये कहना है, देखिए जस्टिस तो मिलके ही रहेगा, लेकिन इतना अच्छा मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इलेक्शंस बहुत पास में है, प्लीज इस इशू को बढ़ाइए, ग्रुप से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, कम से कम देखिए आकर के, कुछ भी अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। और ये कहना बिल्कुल झूठ होगा। अगर आप लोगों ने हीट जनरेट किया तो हम लोग इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे जल्दी, वरना फिर 14 जून 2024 और 24 में तो समझिए 5 साल के लिए तो गवर्नमेंट सो जाने वाली है। 5 साल ये अगर गया, ये इलेक्शन गया, तो गवर्नमेंट तो सो जाएगी। कांग्रेस बीजेपी आ गई तो नहीं करेगी, और अगर बीजेपी चली गई तो ये सीबीआई का केस का कंक्लूजन अगले महीने आ जाएगा। बिल्कुल। और ये अगर बीजेपी चली गई तो ये इलेक्शन सर, बीजेपी बाहर, ये केस भी बाहर। प्लीज कीप इट इन माइंड कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी थी, को वो पूरी चीजें दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चली गई, आप उम्मीद मत रखिए कि इस केस में कुछ भी होगा। सो कंसिडर 24 एज वेरी क्रिटिकल। आपकी जितनी भी शिकायत हो सकती है, लेकिन फैक्ट ये है कि क्योंकि बीजेपी थी इसलिए सीबीआई आ गई। अगर मान लीजिए कोई और पार्टी रही होती, या वो पार्टी रहती जो एमबीए में थी उस वक्त, वो कभी इसमें सीबीआई होने नहीं देती। कीप इट इन माइंड। यस सर, मेरा बस ये कहना है ना कि ये बहुत बढ़िया मौका है।
ऐसा कोई ये सब अगर ये कोई कह रहा है कि हम इतने बिजी हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, जी नहीं। स्पेशली वुमेन्स, हम बाहर भी काम कर रहे हैं, हम घर भी कर रहे हैं, तब भी हम किसी भी हाल में सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर ही रहे। तो उतने देर आप जो आधा घंटा 1 घंटा जो भी देते हो, उसमें 2 मिनट लगा करके आप वीडियोस एटलीस्ट देख लो, एटलीस्ट लाइक कर लो, एटलीस्ट शेयर कर दो। उससे तो कुछ किसी का नहीं बिगड़ रहा। तो सर मेरा ये सिर्फ मेरा एक ही लाइन है, लास्ट लाइन है, आने वाले इलेक्शन में इस चीज को सबसे टॉप प्रायोरिटी में डाल दो। ठीक है, हमें जॉब, हमें दूसरी मधु है ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड मधु इज सेटिंग द पॉलिटिकल एजेंडा। ये समझ में आ रहा है मुझे कि भाई ये करो तभी वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। शी इज सेटिंग अ पॉलिटिकल एजेंडा। बेटर बी बीजेपी, बेटर बी केयरफुल। यस मधु, जस्ट स्टे ऑन। अभी मैं जरा मैगी को, मार्केट को चांस देता हूँ थोड़ा। मार्केट प्लीज गो अहेड, योर चांस। My 4% is left. अभी मैं गायब भी हो जाऊंगी बहुत जल्दी। बैटरी इज ऑलमोस्ट डाउन। प्लीज क्विकली स्पीक। प्लीज स्पीक। एक्चुअली मेरा भी तो वही क्वेश्चन था कि सब बोल रहे थे कि जैसे ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चेंज होगी तो इस केस में कुछ दिखेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, पता नहीं। किसी को कुछ नहीं दिखा। फिर अभी 24 का 2024 का हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि तब गवर्नमेंट क्या आएगी तब। So I really don't know. 24 में गवर्नमेंट बदल गई तो ये केस ठंडे बस्ते में गया। तो अभी भी वो ठंडे बस्ते में, अभी भी कौन से ऊंचाई पे है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका केस, हाँ। आप 1 मिनट 1 मिनट, well let's talk about the positive aspect of it. ये केस बंद नहीं है, यही बहुत बड़ी चीज है। आप समझिए इस बात को। अगर ये केस बंद हो जाए तो आप ये डिस्कशन भी करने का स्कोप नहीं बचता मेरे लिए। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन नॉट रेज द इशू बिकॉज then there will be somebody asking me आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या है, इस केस को क्यों उठा रहे हो जब केस बंद हो गया है। सो मेरे ऊपर भी मोटिव्स तो रेज होंगे, नहीं होंगे क्या? तो केस खुला हुआ है इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो डोंट अंडरमाइन समथिंग व्हिच इज देयर। केस का खुला होना है बहुत बड़ी चीज है, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज मे बी देयर इज अ करंट डिस्पेंसेशन। अगर ये गवर्नमेंट बदली 24 में, केस ठंडे बस्ते में, सिंपल एज दैट। अल्टीमेटली वही है कि हम लोग जो कर रहे थे, लाइक द मूवमेंट जिस तरह से हम लोग चला रहे थे, वी हैव टू कंटिन्यू एंड वी हैव टू हैव मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशंस जो हम लोग कभी करना बंद कर दिए थे बीच में। सो सर प्लीज डू कम। हम लोग जितना बोलेंगे एटलीस्ट मंथ में एक बार भी हम लोग बोलेंगे तब भी तो वो पहुंचेगी ना दूसरों तक। So I think so we need to do more of these kind of sessions so that we can keep the case alive. 2 hours 38 minutes we are already on. अभी तो पूरे साल का हिसाब किताब एक ही दिन में कर दिया हमने। चलो yes, stay on. Megha is waiting for long. Bichari, she is connecting and getting disconnected. Nina ma'am, I'll come to you, so don't be in a hurry. Yes, Megha, quickly, and then Nina ma'am. Yes, sir. First of all, it's like a family. Happy to see everyone. Secondly, I have few points. I'll start with the family. Like as a personal, silently, I'm supporting this cause. As Sarvani Didi was mentioning, I'm also not watching Bollywood, and I have like the respect is gone forever. So अब हम लोग बहुत अलग एंगल से देखते हैं उनको कि वो अपना जॉब कर रहे हैं। मतलब मैं पहले भी देखती थी, बट अब ज्यादा ही लग, they are just employee and doing their job. One request Rudra is making. Rudra is saying that if we can request for letter. I would not make a request for letter. I will make a different request. I will say that your first campaign was justice for Sushant, right? To know exactly what happened, and second, something like this should not happen in Bollywood again. That was the first part of it. So Bollywood तो बुरे हाल में है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अब दोबारा ऐसा हो, ऐसा मुझे लगता है। क्या होगा no one knows, but इतना easy नहीं होगा। Real justice तो हमें मिला नहीं है, तो that is first campaign. Second campaign was justice for CBI, which you achieved. Third was boycott Bollywood, again you achieved. So दो campaign तो you achieved. First campaign partially achieved. I would say you run a campaign for 302. 302 officially to be registered, 302 for SSR, yeah, 302 in SSR, whatever way you want to hashtag it. Do that. If the moment there is a 302 on paper, I think you have achieved your target. That is what I'm saying. Rest, court will take care. पहले वो achieve करो, because if you achieve 302 on paper, then the job is done, because तब कोई हटा नहीं सकता 302 को court में discuss होने से. So your primary interest and primary focus should be that somehow get 302 on record. Yes, go ahead. Yes, Megha, go ahead. Yes, sir. So
I saw the stories, I saw the news as well when Sushant's sister was coming, and she was saying that they were, on the case and they were doing so. So end of the day, as a person, I'm saying its family has to come at the front, because like you are mentioning कि हमें क्या, हमारा क्या motive है इसके behind. So I think we are supporting as Sushant's fan, or as a person he was, and still after 3 years we are here and sharing it. बट आई थिंक एज अ फ्रंट अगर फैमिली आएगी तो आई थिंक जो लोग इतनी इस केस पे, मैं पर्सनली जैसे शर्वनी है, मैं साइलेंटली आई एम सपोर्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली एंड यू मेंशनिंग कि हम लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन, दे नोज इट, ठंडे बस्ते में धीरे 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 साइलेंट हो जाते हैं. एंड आई सॉ योर नोटिफिकेशन एंड इट्स हैपनिंग. आई नो मेरा जो अभी जो व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज सम डिफरेंट व्हाट एवरीवन वाज डिस्कसिंग, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकली सेइंग व्हाट इज इन माय माइंड. So and it's very practical. हम लोग जब तक हमारा you don't need to be apologetic about it. Fact है, ऑफिस आदमी को काम भी करना होता है. सर्वनी योर कैमरा इज फ्लिप. यस, काम भी करना होता है और बाकी भी चीजें हैं, बट एंड ऑफ द डे because the campaign is yours, you have to also have a responsibility towards the campaign. So that's Madhu is saying, like liking, जो हम अपनी जो भी जिस तरीके से भी जैसे भी तरीके से सपोर्ट कर सकता है वो करता रहे इस कैंपेन को, और फ्रंट पे आके जो कर सकता है वो करता रहे. आई मीन जितने जैसे भी तरीके से जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो उसको सपोर्ट करता रहे, तभी आई थिंक वी गेट जस्टिस. एंड शी इज मेंशनिंग वेरी करेक्टली कि अभी इलेक्शन पास में है, सो आई थिंक अब थोड़ा और वी हैव टू कम फॉरवर्ड, स्पेशली फैमिली को आके करना चाहिए. तो दैट्स फाइन. थैंक यू. यस नीना मैम, मेरा कंक्लूजन यही है कि मैं आई एम नॉट इंडियन, सो वोटिंग तो मेरे उसमें नहीं है. Only thing I can do is pray that Sushant get justice. आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, आप चाहे तो ले नहीं सर, इधर ही अच्छी हूँ मैं. है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, you are entitled for it. Person of Indian origin. वो सब है, यहाँ पर एक केस नहीं सुलझता. यहाँ पे एक come back and take a citizenship, Indian citizenship, become part of the growing India. 150 crore and still growing. ये केस तो सुलझ नहीं रहा अभी. मैं मेरा केस कहाँ लेकर आऊँ, छोड़ दीजिए मुझे यहीं पर. पहले खुद के तो इंटरनल नेशनल केसेस उन लोग सॉल्व कर लें. नहीं, हमारा देश बहुत महान, हमारा देश बहुत बड़ा देश है. सबको एडजस्ट करना है. सही बात है, पधारो फिर देखते क्या करते हैं. बट एनीवेज हमारी मेरी तो बहुत दुआ है, दिल से दुआ है कि इस बच्चे को इंसाफ मिले, इसको जस्टिस मिले. आई रियली होप एंड प्रे, एंड आई वांट टू सी यू रेगुलरली. Okay. I will certainly keep that in mind. Thanks. Okay. Yes, first Sarvani and then first Rinku and then Sarvani, and then because Sarvani is also coming after a long time. Yes, Rinku, quickly, your turn. सर मैं एक बात बहुत खुशी हुई मुझे रुद्र की बातें को सुन करके, और बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग ग्राउंड वर्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उससे हमें काफी मोटिवेशन मिला. और दूसरी बात यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और हमारा लोकतंत्र कहता है कि जितनी आवाजें होंगी उतनी ही मजबूती से आप अपनी आवाज को बुलंद करके अगर कहेंगे तो उसकी आवाज जो है दूर तक जाएगी. और मैं इसके लिए पूरी तरह से मैं विश्वास रखती हूँ कि जो आज की सरकार है, हमारी सरकार, उसके पास अपनी प्रायोरिटीज होंगी. बहुत सारे मुद्दे हैं. हमारा देश बहुत विशाल देश है और यहाँ पे जितना बड़ा देश है उतनी ही समस्याएं भी है. तो हमारे हिसाब से अपनी बात को कहने. आपसे मेरा एक सवाल है, क्या एक प्रपोजल ये है कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या 24 में अगर बीजेपी गवर्नमेंट बदल गई तो इस केस को फायदा होगा या नुकसान? व्हाट डू यू थिंक? सर आपको एक बात बता दूं, 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बदलने वाली है, वही वापस आने वाली है. और वो एज अ बीजेपी सिंपैथाइजर नहीं मैं आपको बता, इस केस में बीजेपी गवर्नमेंट जाने से, मोदी गवर्नमेंट जाने से इस केस को फायदा होगा या नुकसान? हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं फायदा हो जाएगा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ही रोक रही है. सर एक बात बता देती हूँ, बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में गवर्नमेंट ने किए हैं, उस तरीके में आपने उसने कोई मुद्दा उस
फुट है, बहुत टाइम नहीं होता है, बहुत बार जो चल रहे पास चल देखिएगा उसने बहुत लंबा समय लिया है और बहुत लंबा समय वॉइस क्रैकिंग। ओके आपकी आवाज पूरी तरह से क्रैक कर रही है। ओके सर, आई थिंक बैटरी इज डाउन। नो बैटरी इज ओके, आवाज ओके, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जो अभी की सरकार है उसका एक काम करने का एक अंदाज है, एक तरीका है, और इसको देखने के लिए अगर हम देखें तो जितने भी केसेस अभी चल रहे हैं, चाहे अतीक अहमद का केस देख लीजिए, अभी जो चल रहा है बहुत करंटली बहुत न्यूज में रहता है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया, चाहे बहुत वो तो योगी सरकार है, वो योगी सरकार। सर योगी सरकार, मोदी सरकार का कोई लेना देना। सर मैं वो योगी सर मैं अब योगी सरकार को लेकर आए, योगी जी करेंगे तो बोलिए। वो सर योगी सरकार भी डबल इंजन की सरकार है, वो भी बिल्कुल एक तरह से अकेले वो काम नहीं करती, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें सेंटर से भी चलती है सर। उसमें एनआईए भी अगर आ गया है, उसमें ईडी भी आई हुई है, तो उसमें सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट है सर। मैं उस बात में नहीं जाना चाहती, मैं ये सिर्फ एक कहने का मेरा ये मतलब है कि ये चाहे धारा 370 हटाई गई हो या बहुत सारे मसले ऐसे, मैं एक प्रोमिनेंट केस को मैं लेकर के आ रही हूँ जिसको लोग देखें, तो उसमें उन्होंने एक दिन में एक रातों रात किसी भी काम को नहीं किया है, दे हैव टेकन टाइम। और ये सर मैं एक बात बताऊं, 3 साल तो निकल गए, अब कब करेगी ये सरकार? अगले साल चली जाएगी, उसके बाद अगले साल वो दोबारा बड़ी मेजोरिटी में आ रही है सर, और उसके बाद ये मसले सर देखिए सर, मैं एक बात बता दूं, हो सकता है इनके सीबीआई के पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हो जिसके साथ वो उस केस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनको और भी बड़ी मछली पकड़नी हो और बहुत सारी चीजों को पकड़ना हो, तो इसके ये तो एनसीबी बहुत बड़ी मछली पकड़ने आई थी, वो तो समीर वानखेड़े को ही पार कर दिया सर। ये बहुत ही दुखदाई रहा और मुझे उस समय आपकी बड़ी याद आती थी और मुझे लगता था कि आप जैसा कोई विश्लेषक होता और इस प्लेटफॉर्म पे हम मैं तो कर रहा था, मैं शो कर हाँ रहा था सर कर पा रहे थे कुछ। आजकल मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गई हूँ और बहुत ट्रैवलिंग की। ये बोलिए ना आप भी, ये मत बोलिए मैं नहीं था, मैं हाँ था, सर, जब भी इंपॉर्टेंट केस होता है मैं रहता। हाँ सर आप थे सर, कई बार मैं नहीं आ पाई और मैंने आपके वीडियोस आधे अधूरे बहुत जितना हो सका मैं बन पड़ा, मैंने देखा सर। मैं ये बहुत उम्मीद रखती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि हम भी अपना काम लगातार करते रहे, ये हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए और ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होना चाहिए, और ये हमारी आवाज लगातार जाने से उनको ये पता चलेगा कि लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है सर, मैंने आपको नहीं एक मिनट रुकिए। लोगों को मोदी सरकार से इस केस में परेशानी, उसका रीजन क्या है कि 3 साल में मोदी गवर्नमेंट से इनको बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, 3 साल निकल गए, मोदी गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने बहुत उम्मीद से समीर वानखेड़े को लाया और समीर वानखेड़े कोई एक आइसोलेटेड केस में मत देखिए, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ द वे गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। आपने कहा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वी हैव सेंट हिम टू कैच बिग फिश, he came here the backing of the director, he worked for 1 year and then he caught a big fish in the shape of Aryan Khan. 1 month Aryan Khan was out of the jail and he was out of Mumbai. अगर ऐसा एग्जाम्पल आप सेट करोगे एज अ गवर्नमेंट, आप मोदी सरकार हो, अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे तो लोगों को क्यों नहीं शक होगा कि शायद ये केस भी ठंडे बस्ते में जा रहा है। अगर समीर वानखेड़े को इन्होंने बैक नहीं किया तो फिर ये केस में पब्लिक को सर मैं एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, मैं उस बात को फिर दोबारा कहना चाहूंगी और बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगी कि हम बदलाव जरूर चाहते हैं और सरकार बदलती है, लेकिन लोग नहीं बदलते, सिस्टम वही रहता है। इसलिए हमें आवाज लगातार उठानी होगी जब तक ये सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सर हम नहीं बदलने के लिए तैयार। मोदी जी के रहते सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा है सर? क्यों नहीं इस केस में? सर किस केस में कंक्लूजन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों, कौन रोक रहा है? सर एक बात बता देते हैं, हम जब बदलेंगे तभी देश बदलेगा, हर व्यक्ति बदलेगा तभी, और जो लोग नहीं बदल रहे उनके लिए उनको हमें पॉइंट आउट करना होगा सर। हम ये सरकार बदलती है, वोट दे करके हम नहीं सरकार बदल लेते हैं। समीर वानखेड़े को सबने पॉइंट आउट, क्या प्रोटेक्शन मिल गया समीर वानखेड़े को? सर ये टुडे ही इज अ विलन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेटअप ही इज अ विलन। यस सर, दैट इज वेरी, हीरो है, पब्लिक के लिए भी हीरो है, बट गवर्नमेंट सेटअप के हिसाब से ही इज द विलन, ही इज अ करप्ट मैन। Is Samir Wankhede a corrupt man or is he an honest man? He is an honest man, I believe. Let's do this show. I will call this show tomorrow. Let's do a Speak Up India tomorrow. Do you believe Samir Wankhede is a corrupt man or he is an honest man? He is an honest man. He is an honest man.
today we are focusing on Sushant. Let's not digress. Let's conclude this. We'll talk about this tomorrow because it's equally important. Agar example है समीर वानखेड़े, so it's a very sad example. Yes, let's conclude with Sushant. Yes, sir. मैं यही कहना चाहूंगी कि we should keep on raising our voice. We should stand together and we should be always we should do our effort whichever way we can do. और ये एक और दूसरी बात, ये जो मैं दूसरी बात मैं ये जो सुशांत से लोग क्यों अटैच है, मैं इस बात पे एक बार जरूर से कहना चाहूंगी। जो लोगों के मन में एक विचार रहता था कि ये हीरो हैं, हीरो शब्द जो है, पहले हम ये एक्टर्स को हीरो कहना बंद करें। हीरो अलग होते हैं और एक्टर अलग होते हैं। लेकिन सुशांत वाज अ हीरो बिकॉज ही हैड although he was very young, he was a very talented child, and he showed path to the people. So in many ways people took him as a hero. That's why people are standing for him, and the campaign is still going on in our hearts. Not only me, but many people. Okay, thank you and good night. Okay, sir. Thanks. Thank you. Yes, sir, Vani. Yes, sir. Finally, मैं भी यही कंक्लूड करना चाहूंगी, ये कह के कि मधु के पास भी आऊंगा कंक्लूजन के लिए। मधु जस्ट स्टे ऑन, ऐसा नहीं कि मधु तुम्हारे पास तुमको चांस नहीं, तुमको भी 2 मिनट चांस। सर आप लोग तो यहाँ पे वोट करके कर सकते हैं, मैं तो यूके से हूँ तो आई कांट इवन वोट। उससे क्या फर्क पड़ता है? हैदराबाद अभी आप मैं भी विशाखापट्टनम में हूँ सर, बट यस तो सर लड़ाई तो यूके से शुरू हुई है, खत्म हम लोग वहीं पे करेंगे। यूके में तो बिल्कुल सर, हम लोग वहीं से लड़ाई कंटिन्यू करेंगे सर, जिस तरह से पहले कंटिन्यू कर रहे थे। तो लड़ाई तो जारी रहेगी सर। हमारे लिए सुशांत केस हमेशा एक मर्डर केस था, है और रहेगा, चाहे वो कोई माने या ना माने। और आपको लगता है इस साल में पिछले 1 साल में नहीं हुआ, वो अगले सर यू नेवर नो, कभी कभार ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि इतनी फास्ट पेस में मूव करें कि यू जस्ट गेट जस्टिस लाइक दैट। सो आई नेवर गिव अप होप, सो आई एम स्टिल होपिंग विथ माय स्पिरिट्स हाई कि शायद इस सुशांत की पावर इतनी ज्यादा है सर कि वो कुछ भी कर सकता है। आई बिलीव इन दैट कि he can do it. मधु, पिछले 1 साल में जो हुआ वो अगले 1 साल में ऐसा ही होगा या नहीं सर? ये अगले 1 साल में बिल्कुल बदल जाएगा। क्यों ना सर? क्योंकि अभी तक बीजेपी बहुत स्ट्रांग चल रही थी, ठीक है, मैं भी बीजेपी की सपोर्टर हूँ, बहुत स्ट्रांग चल रही थी। सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट तो उसने इंडिया को दिया है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और ऑफ कोर्स ये इंटरनेट, ठीक है। लेकिन सर अब क्या हो रहा है ना, अब बीजेपी के बहुत सारे वीक पॉइंट्स हर गवर्नमेंट के होते हैं। हर गवर्नमेंट कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। ये गवर्नमेंट बहुत तेजी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी, लेकिन सर अभी इनका क्या हो गया ना, अभी ये बहुत सारी चीजों में घिरे हुए हैं, ठीक है। अभी ये बहुत ऐसी चीजें हम अभी बोल नहीं सकते। मेरे पास अभी लिस्ट ऑफ पॉइंट्स है जो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बोलती हूँ। तो इस वक्त मेरा यही कहना है, ये बीजेपी अगले साल शो के लिए वेट कर रखना है। नहीं सर, मतलब मेरा ये कहना है ना कि बीजेपी भी बहुत सारी चीजों में वीक चल रही है, और ये कमिंग ईयर में ना उनके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत बढ़िया चांस है कि हम अपनी दूसरी चीजों को, अपनी जॉब को लेके या अपनी दूसरी चीजों को लेने के साथ साथ इस केस को हाईलाइटेड रखें, क्योंकि बीजेपी के पास सच्ची में सर अभी कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। वो टॉयलेट इशू, वो क्या बोलते हैं 2000 का नोट, ये सब कुछ पुराना हो चुका है। तो अभी उनके पास बहुत स्ट्रांग नहीं है, और जितनी उन्होंने अभी तक जितना बड़ा प्रोजेक्ट लाना था वो ला चुके हैं। जैसे कि वो रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो कोई बहुत इंडस्ट्री या बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। जॉब को लेके वो वीक चाह रहे हैं, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो जिससे वो वीक पड़ रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सही टाइम है गवर्नमेंट पे बैंग ऑन करने का, गवर्नमेंट को प्रेशर देने का। सो अभी लोहा गर्म है, तो लोहा जब गर्म हो तभी स्ट्राइक। ये साल वो वीक है सर, और बीजेपी को अगर वापस से लौटना है, ऑफ कोर्स लोग बहुत सपोर्टर हैं, लेकिन अगर वो ये साल वीक पड़ रहे हैं ना सर, तो कहते हैं ना कि जब गर्म हो तभी इसका फायदा मूवमेंट को उठाना चाहिए, एंड दे शुड एक्सप्लॉइट एंड दे शुड गेट जस्टिस इन दिस केस बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाट। हां सर, जस्टिस तो मिलेगा, हां जस्टिस तो मिलेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतनी और 10 साल और 5 साल हमें वेट करना पड़े। हम अभी चाहते हैं। Okay, man. Thank you so much, sir. Thanks, Madhu. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks to everybody who joined the show. Thanks a lot for connecting after a long time. We had a great session. I hope all of you liked the session. If there's anything that we have missed, please do point out. I'll wait for your feedback and reactions
on how you think and what you think about the show. Please stay connected. Please do share the video and do keep coming, because this is your platform. I am there because of you. When you go to sleep, I also go to sleep. So hopefully you are more active, and I shall equally respond by coming and doing more shows more often. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe. Good night. Take care. Shabba khair.